Assalamu alaikum to all the viewers and my wonderful participants of Rehan AI Teachers Institute. Myself, Mariam Zulfikar, training wali, working as Vice Principal at Rehan School Online Academy and Facilitator at Rehan AI Teachers Institute Teacher Training Bootcamp for 2 months. Tonight is the 23rd July 2025 and the time is 8 minutes past 9 p.m. UTC plus 5 according to Pakistan Standard Time. And I believe all the participants are enjoying good health. So thank you so very much for joining. Rahul Bhai, please play the meditation video. I request all the participants please sit straight and try to comfortable sit on a chair or any comfortable sitting you are right now and sit properly. Your back should be straight, your neck should be straight, and then we'll proceed towards the meditation video. Rahul Bhai. वालेकुम अस्सलाम मिस इकरा। 1 मिनट में मैं लगा रहा हूँ। ओके जी, श्योर थिंग। शफीक भाई अपना कैमरा ऑन कीजिएगा। मिस अपना, अरे वाह जबरदस्त मिस अपना। फारूक भाई थे, फारूक भाई लीव हो गए। ओ फारूक भाई भी है। फारूक भाई आप कैमरे पे नहीं है। ये वसीरम में तो है। मिस राहत, मैंने मिस सोलत से रिक्वेस्ट की थी कि आप उनकी प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो और इस तरह के सारे काम जो है वो स्कूल में लाइन अप करवा दीजिए और उनको गाइड कर दीजिएगा इन चीजों के बारे में। इसी तरह से लाइबा हमें भी 2-3 दिन से ज्वाइन नहीं करी, उनका भी ये टास्क पेंडिंग है, उनको भी करा दें ताकि वो भी ऑन बोर्ड अपने सारे टास्क कंप्लीट कर सके। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। जी मिस लैला, आपका कोई सवाल है? मैम एक रिक्वेस्ट करनी थी, अगर वो आपके रूल को ना तोड़े तो काइंडली मुझे परमिशन दीजिएगा, वरना बता दीजिएगा, फिर मैं आपके इदारे के रूल को ही फॉलो करूंगी। मुझे ये था कि अगर कॉल एनी और चैट जीपीटी के लिए अगर मैं अपनी जो आपने मेरी पिक्चर लाइन अप की थी मतलब लोगों के साथ, अगर मैं वो लगा दूं और साथ अपना ये वाला पूरा कर लूं टास्क, तो कोई इशू है या मुझे बाय फेस ही बैठना है हर सूरत? जी कैमरा ऑन करके ही उस टास्क को कंप्लीट करना है, ओके अदरवाइज मैम। कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। बहुत शुक्रिया। जी राहुल ओके भाई मैम। प्लीज मेडिटेशन। राहुल भाई साउंड शेयर नहीं हुआ हुआ। नहीं राहुल भाई, मोर पे क्लिक करें। जूम की एक स्ट्रिप आती है ना ऊपर, उसमें मोर का ऑप्शन है। राइट साइड पे देखे, दाएं तरफ आएगा वो। मोर पे क्लिक करके और आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलेगा शेयर कंप्यूटर साउंड। उस पे क्लिक कर दे और मोनो या स्टीरियो में से कोई भी क्लिक कर दे तो आपका साउंड शेयर हो जाएगा। मिला आपको? मैम अब हो रही है? नहीं, दोबारा से कीजिएगा। आप स्टॉप शेयर करें और राइट साइड पे चेक लगा के फिर शेयर करें स्क्रीन को। मैम अब हो रही है? नहीं, अच्छा नसीमुल्ला भाई प्ले कर देते हैं, हम बाद में ये करेंगे राहुल भाई। जी नसीमुल्ला भाई प्लीज प्ले द मेडिटेशन वीडियो।
meditation. This may be short, but it is powerful. Allow yourself to get into a nice, comfortable seated position. Spine tall and straight, shoulders rolling back slightly, dropping down, opening up your heart. Letting your palms rest open in your lap. And softly, close your beautiful eyes. Begin to focus in on your breathing, stomach and ribcage expanding on every inhale and contracting on every exhale. Really tune into a sense of power in your lower abdomen as you breathe, expanding the muscles on every inhale and contracting them on every exhale. You feel a sense of bright orange energy wrapping around you, especially your abdomen just below your navel. And you let this energy infuse your body. You might feel a tingling, an uplifting of your energy. Trust where this is taking you. Allow your energy to rise. And now, what is it you've been desiring to manifest? Allow, if only for this moment, to connect to your higher self, the eternal, all-wise, all-knowing you. Notice how they feel about that which you are desiring to manifest. They feel as though you already have it, or something even better. For them, it's all possible. It's already yours. Set the intention to align with how your inner being sees this. Feel those perspectives lining up. And you let yourself relax into a sense of, oh, it's easy. I already have what I desire. Tune into the feeling that you think having what you desire will bring you. For example, if you desire a loving partner, you can let yourself feel love now. If you desire more cash, you can let yourself feel the excitement and security of a growing bank account. Tune in to the emotion you think your desired outcome will bring you, and give yourself that emotion now. And let your inner being, your higher self, help you with this. It may cause you to bring a smile to your face, or maybe even tears. That's okay. Allow the strong emotions to build. Not the strong emotions of not having what you desire, but the strong desire, the strong emotions of having what you desire. How it feels to have what you want. You already have it. And you feel your inner being letting you know it's so easy. Stay connected with this feeling for as long as you can. Even as you begin to roll your shoulders, wiggle your fingers and toes, and open your eyes to the world around you, feeling deep inside of you that you know you are the creator of your reality. Continue to return to this practice or longer ones as often as you can, to allow yourself to align
with the emotions you've been seeking externally. You have every right to give them to yourself now. Thank you so very much, participants, for practicing this meditation video. I hope you enjoyed it and now you're feeling more relaxed. So let's start our class. If you guys have any problem, any challenge regarding yesterday's task, please let me know about them. आपको कोई भी challenge रहा, कोई problem रहा कल के टास्क के रिलेटेड, तो प्लीज वो बताइएगा और फिर हम अपने नेक्स्ट आज के टास्क की बात करें। वैसे हम थोड़ा सा लैपटॉप का लिड नीचे कर ले। जबरदस्त हो गया जी, बताइएगा अपना सवाल। जी, पहले तो ये कि वो जो कल आप बता रही थी कि कैनवा पर पोस्टर बना के आपने जो अपना अगर किसी का इंटरव्यू लिया तो बाद में आप उस पर पोस्टर लगा सकते हैं जो आप लाइव जा रहे होते हैं फेसबुक पे। तो मैंने कल मिस कैला का लिया था इंटरव्यू, तो मैंने उस पर पोस्टर लगाने की कोशिश की फेसबुक पे, लेकिन 2-3 दफा अप्लाई किया, वो नहीं हुआ। दूसरा अच्छा। मेरे साथ ये है, अब मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए थी कि मेरा रीस्ट्रीम आप प्लीज मुझे हेल्प करेंगे लाइन करने में लिंक्डइन के साथ। पता नहीं क्या बात है कि स्ट्रीम यार्ड पे काम करके ना, अब वो जो मतलब ये दूसरे वाला जो आपने बताया रीस्ट्रीम, इस पे काम नहीं हो रहा। पता नहीं, शायद काम थोड़ा ज्यादा हो गया, तो थोड़ी सी एंग्जाइटी सी फील हो रही है। आप मेरी इसमें हेल्प करेंगे? और तीसरा ये कि वो जो आपने एक इंटरव्यू की, पता नहीं कोई हेड बताई थी कि उनको ऐड करना है, उनके बारे में दोबारा इन्फॉर्म कर दें। थैंक यू। पहली बात तो जो आपने कहा कि आपका जो पोस्टर है वो नहीं अप्लाई हो रहा, तो वो पोस्टर की डायमेंशन पहले आप चेक कर ले कि आपने किस डायमेंशन पे बनाया था। जो हमारा इंटरव्यू होता है ना, जो हम कंडक्ट करते हैं, वो 16:9 की रेशो पे जो है वो हम कंडक्ट करते हैं, उस पे होता है। तो जब आप अपना पोस्टर डिजाइन करते हैं या आप अपना जो थंबनेल उसको बोलते हैं, वो थंबनेल जब आप डिजाइन करेंगे तो उसकी डायमेंशन जो है वो 1080x920 होनी चाहिए। अगर तो इसी थंबनेल की डायरेक्शन में आपने उसको डिजाइन किया था, फिर तो उसको बिल्कुल एडजस्ट होना चाहिए था। दूसरा ये है मैंने वो कैनवा पे वो जो देते हैं ना डायमेंशन वगैरह, तो मैंने उसको बताया था कि फेसबुक का पोस्ट बनाना है, तो वो उसने उसके मुताबिक किया होगा। एक्चुअली मैंने आपको थंबनेल के बारे में गाइड किया था, पोस्टर के बारे में नहीं। पोस्टर जो है ना उसकी डायमेंशन डिफरेंट है और जो थंबनेल है उसकी डायमेंशन डिफरेंट है। और मैम ये थंबनेल नहीं लगेगा? जो फेसबुक की वीडियो होगी उसके ऊपर थंबनेल नहीं लगेगा ना, जो उसका थंबनेल थंबनेल होगा? पोस्टर वो होता है जो आपने बिफोर इंटरव्यू अनाउंस जी करना जी, है, हाँ वो जी हाँ जी। आफ्टर इंटरव्यू जो आप लगाते हैं वो थंबनेल होता है। चलिए ठीक है, मैं इसको ना फिर अभी खुद पर्सनली चेक करूंगी आज, फिर अगर ना हुआ तो फिर आपसे गाइडलाइन। ठीक हो गया। सेकेंडली आपने बात की है अपने लिंक्डइन के बारे में और रीस्ट्रीम के बारे में। तो रीस्ट्रीम लिंक्डइन के साथ तभी कनेक्ट होगा जब आपके 150 फॉलोअर्स और 150 कनेक्शंस कंप्लीट हो जाए। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो आप अपने रीस्ट्रीम या स्ट्रीम यार्ड दोनों में से जिसको भी लिंक्डइन के साथ कनेक्ट करेंगे वो कनेक्ट हो जाएगा और आप उसके थ्रू लाइव जा सकते हैं। मैम मैं आपको दिखाऊंगा अपना लिंक्डइन पे, कल मेरी ये चीजें पूरी हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। नसीमुल्लाह भाई आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, जब ये कैनवास से हम लोग बनाते हैं ना थंबनेल या पोस्टर, इस तरीके से बाज़ का तो उसी एचडी ज्यादा कर देते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी कर देते हैं। वो बाज़ का तो उसकी जो है ना एमबी ज्यादा हो जाते हैं। वो मॉडरेट करेंगे तो हो सकता है। उससे तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन से जरूर फर्क पड़ता है। जैसे कि अभी हम अगर पोर्ट्रेट मोड में बना रहे हैं और उसमें हमने 16:9 के रेशियो लिया है, लेकिन जब हम उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको कह देता है कि इंस्टाग्राम इसको क्रॉप कर देगा। जो स्केरल डायमेंशन में चीज रहेगी बस वो इंस्टाग्राम कैच करेगा, बाकी सारी क्रॉप हो जाएगी और वो क्रॉप हो भी जाती है। ठीक है, तो ये चीज होती है कि आप अपनी डायमेंशन का जरूर ख्याल रखें। ठीक है, और जो नॉर्मल थंबनेल है, जैसे कि आप यूट्यूब थंबनेल को ही सर्च करेंगे ना, उसी थंबनेल पैटर्न पे आपका यूट्यूब पे थंबनेल बनता है, उसी थंबनेल पैटर्न को आपका फेसबुक जो है डिटेक्ट कर लेता है। ठीक जी। बाकी रहा रीस्ट्रीम का मसला, तो रीस्ट्रीम आप ओपन कर ले और फिर उसके बाद दोबारा से बताइएगा तो हम उसको कर लेते हैं।
लाइबा, रेहान स्कूल का ये जो बैकग्राउंड है, ये मैंने कुछ 4 बार यहाँ पे शेयर किया है। अगर आपके पास नहीं है तो पहले तो इसको आपके पास ये होना चाहिए। नसीमुल्लाह भाई, अगर आपके पास ये बैकग्राउंड है तो ये शेयर कर दें, ताकि मेरे पास ये बैकग्राउंड है। आपने है फर्स्ट टाइम भी शेयर, हाँ जी, लेकिन ऐड कैसे करना है ये नहीं पता। वो मेथड पूछूं कैसे करना है। वीडियोस में जाइए, जो आपकी छोटी सी वीडियो के साथ इतना सा एरो है ना, उस पर क्लिक कीजिए और वहां पे आएगा एडजस्ट फिल्टर एंड बैकग्राउंड। वहां पे आप इसको ऐड कर दीजिए। वहां पे आपको बहुत सारे मिलेंगे। ये जो अभी जावेद भाई के पीछे नजर आ रहा है ना, ये उन्होंने वहीं से अप्लाई किया। तो वहां पे प्लस का साइन आएगा, वहां से आप ऐड करोगे। यहाँ पे स्टॉप वीडियो है, ठीक है, उधर छोटा सा एरो है, उस हाँ एरो पे जी, क्लिक। उस एरो पे क्लिक किया। सबसे पहले आ रहा है फ्रंट कैमरा और मिरर माय वीडियो और वीडियो सेटिंग। वीडियो सेटिंग में गए, उधर हमारे पास आ गया स्टॉप माय वीडियो व्हेन जॉइनिंग, और ये जो सारे आते हैं इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ वो। नहीं, राइट साइड पे देखिए लिखा हुआ है वर्चुअल बैकग्राउंड। वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा वर्चुअल बैकग्राउंड में सारे बैकग्राउंड। जहाँ आप पिक्चर आ रही है उसके नीचे देखो जरा। किधर आपकी अपनी देखूं? नीचे, आपकी अपनी पिक्चर के नीचे, आपको अपना पिक्चर शो हो रहा है वहां पे, उसके नीचे आएगा। उसी के नीचे ही आ रहा है ना। उसके आप नीचे पिक्चर खींच के एक है, मिनट, एक मिनट, मेरे से क्या पता कोई गलती हो रही है। एक मिनट सर, आप वीडियो अपनी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे जूम पे जूम मेथड? की स्क्रीन शेयर नहीं होती लगा। आपको जो शो हो रहा है इंटरफेस, हाँ, उसकी पिक्चर जो है वो चैट में शेयर कर दे, तो फिर नसीमुल्लाह भाई चैट में आपको गाइड करते जाएंगे। ठीक है, सही है। चलो ओके जी। मिस्टर अपना रीस्ट्रीम शेयर कीजिएगा। मैं करती हूँ, पहले स्क्रीन शेयर करो। जी जी, शेयर करके फिर रीस्ट्रीम शेयर कीजिएगा। पार्टिसिपेंट्स, नसीमुल्लाह भाई ने आपके लिए अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर दिया, अभी इसको फिल कर दीजिए। दूसरे अपने सोशल मीडिया लिंक्स का भी प्लीज शेयर कर दें। 4-5 लोगों ने किया हुआ, बाकी लोगों ने किया ही नहीं है। काइंडली वो भी फिल कर दें, रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करें। नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना, स्टार्ट साइन अप फॉर फ्री के साथ। ठीक, इरम मुश्ताक पे क्लिक करते हैं। नीचे स्क्रॉल करें, कंटिन्यू। बेटा छोटो तो माइक ऑन है। अच्छा, इसको क्रॉस कर दे। जी, अब आप ये जो ऑलरेडी राइट साइड पे देखिए न्यू स्ट्रीम लिखा हुआ आ रहा है, उस पर क्लिक कर दे। न्यू स्ट्रीम पे प्लस के साइन के साथ लिखा हुआ है ना न्यू स्ट्रीम, उस पर क्लिक कर दे। अब रीस्ट्रीम स्टूडियो पे क्लिक करें। सबसे पहले हम लोग के पास ये वीडियो है, हमने इधर किया। अच्छा, ये सबसे पहले अब आ कोई गया। बात नहीं, आप विदाउट कैमरा भी एंटर हो जाएंगी। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और नीचे जाके आप विदाउट कैमरा एंटर हो। हाँ जी, ओके। ये जो ऊपर आपकी बार आ रही है ना, उसको क्रॉस करें पहले। हाँ, ठीक हो गया। अब ये चैनल्स का ऑप्शन है, राइट साइड पे देखिए, वहां पे क्लिक करें। टॉप पे लिखा हुआ है चैनल्स, थोड़ा सा ऊपर। ओके मिस जवेरिया, यू कैन। नहीं, फेसबुक प्रोफाइल को करना है, पेज को नहीं करना। जी, कंटिन्यू है जीरो। अच्छा, इसको 1 मिनट फ्रेंड्स को पब्लिक कर ले पहले। अब ये होगा नहीं। हाँ, पब्लिक कर ले और डन कर ले।
राइट साइड से इसको क्रॉस कर दें, ये जो अभी हमें शो हो रहा है इसको क्रॉस कर दें। ये छोटा सा क्रॉस आ रहा है ना ऊपर फेसबुक के पैरेलल में, देखिए राइट साइड पे। आई वांट टू लीव कुडंट बी सेफ, नहीं, बैक पे क्लिक कर दे। आई थिंक इंटरनेट स्लोअर है शायद इस वजह से। नहीं, शायद आपका इंटरनेट काफी स्लो है मिसिरम, अदरवाइज ये 1 मिनट लेता है और ये कनेक्ट हो रहा था और यहाँ पे कनेक्टेड लिखा आ जाता है। फिर इसको क्रॉस कर दो। अभी थोड़ी देर के लिए इसको होने दें, दोबारा जब ये हो जाए फिर स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? इसका प्रोसेस कंप्लीट होने दें। जी आसिफ भाई, आपका क्या सवाल है? मेरी शीट थोड़ी खराब है भाई, उसका सेटअप करा दें। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि आपकी शीट इंशाल्लाह मैं वीकेंड पे बैठ के ठीक कर दूंगी, तो अभी सिर्फ 2 दिन और वेट कर ले, फिर सैटरडे को ठीक हो जाएगी आपकी sheet, ओके। ठीक है? बहुत शुक्रिया जी। मिस रुकदा, अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक तो ये कि jinbaba.com पे जब हम कोई वीडियो यूआरएल पेस्ट करते हैं तो उस पे लिंक एक्सपायर का कोई टाइम होता है कि मतलब लिंक एक्सपायर हो जाए तो फिर वीडियो डाउनलोड वहां पे नहीं होगी यूट्यूब पे? नहीं, मैं जैसे आज कर रही थी, जो मैंने शाम को ही ना कॉल एनी के साथ कन्वर्सेशन की थी, तो उस पे मुझे एरर आ रहा था कि आपका जो लिंक है उस पे प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि मैंने फिर उसको कैंसिल करके शेयर फिर दोबारा कीजिए, किया। अच्छा स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अभी तो ये हो रहा है। मैम, ये मैंने कोई मतलब 6 बजे का लगाया वैसे। इतनी टाइम तो नहीं लेता, ये तो इस सेकंड्स में अपलोड हो जाता है। इससे पहले जो वीडियो की थी मैंने 2 दिन पहले, वो हो गई थी, फिर कल यूज नहीं किया, आज ये किया, तो इसमें एरर ये आ वाली रहा है, चीज। वो दे रहा है ना आपको, एरर कुडंट फाइंड वीडियो यूआरएल इन द पेज। आपके पेज पे शायद वो जो वीडियो आपने लिंक शेयर किया हुआ है ना वो नहीं है, पहले फेसबुक पे जाके ये लिंक देखे कि ये वही लिंक है जो आप अपलोड करना चाह रहे हैं। मिस जी, है वीडियो ये वही वाली है जो मेरी कन्वर्सेशन थी ना एनी के साथ, ये मैंने वही की है। नीचे आइए, राइट साइड पे 3 डॉट्स पे क्लिक करें, कॉपी लिंक कीजिएगा और अब jinbaba.net पे आए। इसको रिप्लेस कर दें। अब ये देखें लिंक में कितना डिफरेंस है। बाकी चेंज ना करूं, बस इसको अप्लाई कर दूं? बस अब अपलोड टू यूट्यूब करें, अब नीचे स्क्रॉल करें और नहीं नहीं, राइट साइड से नहीं, इस सारे को क्रॉस करके नया ओपन कीजिए और फिर नया ओपन करके फिर दोबारा से इसको कीजिएगा। ठीक है। आपके लिंक में ही प्रॉब्लम था ना? ठीक है मिस, वो दोबारा वो वाला इशू जो है ना, अभी मैं नसीमुल्लाह भाई के साथ, हम लोग क्लास में भी इसीलिए थोड़े लेट हुए कि वो मेरे साथ जूम पे थे, हम वो चेक कर रहे थे जिसमें मेरा चैट जीपीटी, हाँ। परप्लेक्सिटी और सेसबी, इन तीनों का वॉइस नहीं आता। अभी उनके साथ बात करते करते ना एक छोटा सा लाइव भी किया था मैंने फेसबुक पे, वो मेरी आईडी पे पड़ा हुआ भी है, वो मैं आपको हम्म, यहाँ पे दिखाऊं? जी जी तो प्लीज। वो नहीं मतलब हो रहा। एक मिस सेकंड। मरियम, मैंने लिंक्डइन कनेक्ट कर लिया। ओके मैं सिर्फ अच्छा मैम, ये ना इनके वो वॉइस वहाँ आती है, लेकिन इनके सिस्टम में कोई ऐसा है चीज जिससे वो वॉइस से ट्रांसफर नहीं हो रही। एक वो तो पहली बात ये, मिस लुबना, आसिफ भाई, आप सबके इंटरव्यू रोज के हिसाब से देख रही हूँ, आप सबके ये जो इंटरव्यूज है ना ये पब्लिक नहीं है, आपको मैन्युअली पब्लिक करने पड़ते हैं। मैं यहाँ पे कोई 3 बार ये सेटिंग बता चुकी हूँ, मैं आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज इनको पब्लिक कर लें। एक ही बार डिफॉल्ट सेटिंग में आप पब्लिक कर लेंगे ना तो आपको दोबारा पब्लिक करने नहीं पड़ेगी। नसीमुल्लाह भाई, मैं आपको एडिट कर रही हूँ ये ब्रेकआउट रूम में, मैं सदफ के साथ और जावेद भाई के साथ, तो इनके टास्क जो है पीछे चल रहे हैं उनको कंप्लीट करा लें।
और जो प्रोफाइल और वो कवर फोटो है, कवर फोटो ऐड करा दीजिएगा, प्रोफाइल पिक्चर मैं इनको भेज दूंगी, फिर ये ऐड, ठीक है। ठीक होगा। मैम ये दिखाऊं मैं आपको, ये एक स्टेप बस मेरे ख्याल रह गया है इसमें। 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे, पहले मैं इनको भेजूं। जी, ये जिनको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है प्लीज ज्वाइन रूम पे क्लिक कर लें। जावेद भाई, मैं सदफ और नसीमुल्ला भाई, रूम ज्वाइन कीजिएगा। जावेद भाई ज्वाइन रूम पे क्लिक करें, मैं सदफ आप भी, ओके। आप मिस मिस ये अपना प्ले कीजिएगा। हाँ, इसको प्ले करें। आपने शेयर साउंड किया था स्क्रीन शेयर करते हुए? जी जी किया था। अच्छा ठीक है। अब ये प्ले हो रहा है। आपकी आवाज भी तो नहीं आ रही। अब हाँ, अब मेरी आवाज भी नहीं आ रही। पहले पहले मेरी आ रही थी, इसकी नहीं आ रही थी, अब मेरी भी नहीं आ रही, तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या इशू आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है, 1 मिनट, इसको चेक कीजिएगा। किसको मिस? मैंने रेड मार्क किया है वहां पे, आपका जहाँ पे एड्रेस बार होता है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ये जो रीसेट परमिशन है इस पे क्लिक करें आप। कैन आस्क टू सेंड नोटिफिकेशन, ओके। आज अब जब आप चैट जीपीटी से बात करें ना, या कॉलनी से बात करें, एक तो यहाँ से आपने अपना माइक्रोफोन चेक करना है, ठीक है, उसको आपने सेट कर देना अलाउ फॉर एवरी विजिट पे। दूसरी बात, जब आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो ना स्ट्रीम यार्ड के थ्रू या रीस्ट्रीम के थ्रू, तो जब हम पूरी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं ना, हम वो टैब सेलेक्ट कर लेते हैं जो टैब हमें सेलेक्ट करना है, तो लास्ट पे ना नीचे एक राइट साइड पर टॉगल आता है, ये शेयर के साथ, और एक छोटा सा टॉगल आएगा, वो आपने मेक श्योर करना है कि वो ऑन रहे। जब मैंने स्ट्रीम या स्ट्रीम यार्ड के बारे में बताया था, तो मैंने ये बार बार ये बात बताई थी कि स्क्रीन शेयरिंग करते हुए ये बात कभी नहीं भूलनी कि ये टॉगल आपका ऑन रहना चाहिए। अगर वो टॉगल ऑन नहीं होता तो इसका मतलब है कि सिर्फ आप आवाज सुन सकते हैं चैट जीपीटी की कॉल लेने की, वो सामने वाली ऑडियंस को आवाज नहीं जाएगी। उसको मेक श्योर कर लें कि क्या वो ऑन रहता है, वो ऑन होता है। मिस ऑन होता, आज भी हमने देखा था ऑन था उसमें। कॉल एनी अच्छा, की वॉइस ठीक है, अभी मैंने शाम को जो उसके साथ किया था ना सेशन, उसमें वॉइस ठीक थी। सही। अच्छा, फिर आप लोग ना क्लास के बाद 10 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है। ठीक है मैम, अभी स्टॉप कर दूं? हाँ जी, आप सॉल्व करो। मेरे आपका क्या सवाल है? राहुल भाई, मैम मिस सोलह, सुलेमान, टर्न ऑन योर कैमरा। जी मैम मेरे, आप एक बार बता सकते हैं कि जूम पे रिकॉर्डिंग कैसे करनी है? जूम पे रिकॉर्डिंग कैसे करनी है? मैंने वो वीडियो नहीं भेजी हुई ग्रुप के अंदर। नहीं मैम। 1 मिनट देना मेरे, 1 मिनट, सॉरी। अभी आपके ग्रुप में एक वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है, जिसमें पूरा प्रोसीजर जूम के बारे में बताया गया कि आप जूम के थ्रू रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप उसको प्ले करके देखेंगे, 11 मिनट की है, थोड़ी लंबी है, लेकिन जब आप उसको देख लेंगे आपको सारे जूम के फंक्शन भी समझ आ जाएंगे, और जूम भी सही से क्लियर हो जाएगा, और साथ में रिकॉर्डिंग भी समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको कैसे जो है मैम वो हम यूज करते हैं जूम को। क्यों? जी, इट्स बिन शेयर्ड, ठीक है। जी शफीक भाई, क्या सवाल है आपका? मुझे भी मैम जो जैन बाबा डॉट नेट पे प्रॉब्लम आ रही है, उसमें मैं जब शेयर करने लगता हूँ तो वो जहाँ पे हमने लिंक पेस्ट करना होता है ना, वो हिस्सा शो नहीं होता। अगर आप स्क्रीन शेयर कहें तो मैं, कीजिएगा। जी देखिए यहाँ तक हम आ जाते हैं। 1 मिनट, पर भाई एक, सॉरी शफीक भाई, 1 मिनट, आपकी स्क्रीन शेयर ही नहीं हुई अभी मेरे साथ। यहाँ लिखा आ रहा है जी अब जी, ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा। जब ये कंटिन्यू कर दिया हम्म, तो इसके बाद, स्क्रॉल करते हैं और करते हैं। हाँ ये आज बस, अच्छा, इसके नीचे वाला इंटरफेस क्यों नहीं आता आपको? एक बार पता नहीं ये लॉग आउट करें फ्रॉम यूट्यूब पे, जो क्लिक आ रहा है ना आपको स्क्रीन पे शो, लॉग आउट फ्रॉम यूट्यूब, इसको क्लिक कर दे। ये मैंने किया है, लॉग आउट फ्रॉम यूट्यूब, दोबारा लॉग इन भी हुआ हूँ।
अब दोबारा यहाँ से इसको बंद कर दें, पूरी टैब को बंद कर देना। अभी वो कह रहा है अब आ जाए। आप नीचे से स्क्रॉल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन, जी अब दोबारा लॉगिन क्लिक करें। अब स्क्रॉल नीचे कीजिएगा और क्लिक ऑन यूट्यूब। हाँ जी, इसको क्लिक कर दें। कंटिन्यू। कंटिन्यू, जी जी कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले एक मैसेज आता है शफीक भाई कि आपने उन दोनों को चेक लगाया था, 2 स्क्वेयर बॉक्स आते हैं। जी वो मैंने लगाया था उस वक्त लास्ट टाइम जब मैं पहले चले, एक दो वीडियो इस तरह अपलोड मैंने की भी हैं, अच्छा फिर लेकिन सही है। अब यहाँ पे आके प्रॉब्लम आ जाती है, वो शॉट डिटेल आई नहीं। लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर मुझे भेज दें। जी ठीक है, मैं ये शेयर कर देता हूँ आपको। चले ठीक है, और अपना ईमेल भी शेयर कीजिएगा साथ में, ठीक जी है। ठीक है। ठीक है। चल, बहुत शुक्रिया। ओके, एनी अदर पार्टिसिपेंट्स, एनी क्वेश्चन, एनी चैलेंज? किसी और का कोई सवाल है, कोई और चैलेंज है तो प्लीज। अहमद मुस्वा मैम, इस वीकेंड होना से पहले गूगल शीट हमारी चेक कर ले ताकि जो टास्क गिवन डेट पर नहीं हुए। हाय हाय, एक गिवन टास्क जो टास्क गिवन डेट पर नहीं हुआ तो वो लाइन हो जाए। ठीक है, आप मैं पूरी कोशिश करूंगी कल या फ्राइडे तक आपको बता दूं कि आपके कौन कौन से टास्क मिसिंग हैं, आप उनको कंप्लीट करें। अच्छा, वो जो गूगल शीट है ना, वो बहुत कस्टमाइज्ड है, वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से टास्क कंप्लीट कर लिए हैं और कौन से टास्क नहीं कंप्लीट किए। मोर और लेस हमारी पूरी कोशिश रही, अगर कहीं एंड पे लास्ट 2 वीक्स में शायद जाके आइडेंटिफाई हुआ कि कुछ मिस्टेक्स है जो कि बुक के साथ गैप आ रहा है, जिसमें एक कैनवा पोस्ट मिसिंग है और शायद एक दो चीज और मिस है। पर बाकी मेजोरिटी ऑफ द टास्क जो बुक के अंदर है वो पूरी उसी तरह से आपके जो गूगल शीट है उसमें अलाइंड है कि आप ये टास्क है आपकी बुक में इस डेट पे और इस वीक में स्पेसिफाइड। ठीक है जी। शफीक भाई, कोई और सवाल है? फिलहाल और कोई सवाल नहीं है। चलो, बहुत शुक्रिया। ओके पार्टिसिपेंट्स, किसी और के कोई सवाल है, किसी और को कुछ कहना है? वो मिस मेरा आपने देखना था। जी आके भाई। मिस मरियम, मैं ये जानना चाहता था कि लास्ट नाइट के क्या टास्क थे ताकि मैं उनको रिकवर कर सकूं फॉर द एब्सेंट ऑन क्लास। आके भाई, ये सेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 3 हफ्ते पूरे होने वाले, हम चौथे हफ्ते में जाने वाले हैं और हमारा ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप बुक को स्टार्ट से करना शुरू कीजिएगा। जहां पे चैलेंज आए आप क्लास में आके उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको फिर क्लास में उस प्रॉब्लम के रिलेटेड अगर मैं क्लास में करवा सकी टाइम के मुताबिक तो मैं क्लास में फिक्स करा दूंगी, और अगर क्लास में नहीं हुआ तो आपके लिए ब्रेकआउट रूम बन जाएगा, तो आप वहां पे जाके अपना चैलेंज रेलिवेंट पर्सन के साथ फिक्स करें। ठीक है, एआई टीचर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, एआई टीचर ट्रेनिंग की लेवल 1, लेवल 1, लेवल 2? लेवल 1। लेवल 1 मेरे पास यहाँ पे एआई टीचर ट्रेनिंग शो हो रही है, लेवल 1 वर्जन 0.2। हाँ जी, यही बुक है। 0.2 वर्जन? जी जी यही बुक है। पहला 0.1 वर्जन ऑब्सलीट हो गया। ठीक है। जी और सेकेंडली मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर कोई काम या स्टूडेंट्स किसी चीज में स्टक हो रहे हैं, लाइक जूम है या वो स्ट्रीम यार्ड है, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ उनकी पर्सनली भी और ऑन द कॉल भी। तो अगर आप चाहें तो मेरी हेल्प ले सकते हैं, मैं फ्री होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। ओके भाई, मरियम मरियम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसा कि आपको पता है डे टाइम काफ़ी मसरूफियत होती है। अगर इस क्लास में हमें 20-25 मिनट मिल जाएं इंटरव्यू देने के लिए तो क्या ऐसा मुमकिन है?
हाँ, 2 घंटे की ये क्लास है मिस राहत। 1 घंटे में तो अभी प्रोबेबली हमारी प्रॉब्लम्स और सारे चैलेंजेस फिक्स हुए, और एक नेक्स्ट घंटे में आज हमारा टेड टॉक है और साथ में कुछ चीजें और बतानी है मुझे। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस क्लास के अंदर टाइम बचता है कि हम इंटरव्यू कर सकें। चले चले ठीक हो गया। यानी कि अगर फर्स्ट घंटे में आपका किसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्वेश्चन नहीं हो तो उस दिन आपको मैं जरूर अलाउ कर दूंगी कि अब आप इंटरव्यू करना चाहें तो इंटरव्यू कर लें, कॉल एनी सेशन या चैट जीपीटी सेशन करना तो आप कर लें। जिस दिन हम सारे चैलेंजेस से फ्री होगे डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, चल जी मिस इरम। जावेद भाई अपना माइक म्यूट कीजिएगा। जावेद भाई आप वापस क्यों आ गए, आपका काम हो गया? मैम नहीं हुआ उधर, जो है सब मैम वीडियो था ना वो स्टक हो जा रहा था, इसलिए लीव करना पड़ा। अच्छा चले, मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आप फिर से ज्वाइन कर लें। जी जी जी। अच्छा मिस, आपका ये जो है ये कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है? अब आपने जब भी आपने इंटरव्यू करना है ना, तो आपने बस ये मेक श्योर करना है कि इन टॉगल्स को ऑन होना चाहिए। ये ऑन नहीं होते बाय डिफॉल्ट, ये ऑन नहीं होते, आपको खुद ऑन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपने ठीक आके ऑन बटन पे क्लिक करना है, तो ये दोनों एक साथ वन गो में ऑन हो जाएंगे। और फिर ठीक आप है इस विंडो को अभी जो है वो सेव करेंगी। ठीक है, इसके ठीक ऊपर है। क्लिक करेंगे, आप लास्ट में देखिए राइट साइड से नीचे स्क्रॉल करें और सेव का बटन मिलेगा आपको। कि आपने ऑलरेडी सेव कर ली है? नहीं, मैंने तो बस जो भी किया ये आपके सामने ही है। अब जरा इस विंडो को ऊपर आइएगा, क्रॉस कीजिएगा इसको जरा। दोनों हो गए मेरे ख्याल, ये हो गया, देखिए। ठीक है। तो ये ठीक इस है तरह से अभी आपके ऑन है, अभी आप लाइव जा सकती हैं और ये दोनों ऑन है। जब आप दोबारा आएंगी नया सेशन प्रिपेयर करेंगी तो ये दोनों ऑन नहीं होंगे, ये दोनों यहाँ पे ब्लू नजर नहीं आएंगे। फिर आपको दोबारा वहां जाके चैनल पे क्लिक करके इसको ऑन करना है और आप इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, ठीक है। ठीक, थैंक यू। मैम चलिए जी। मैम कट हो गया। जावेद भाई आपके इंटरनेट की वजह से ना ये लैगिंग आ रही है। इंटरनेट कोई और अच्छा है इंडिया में तो ट्राई करके देख ले प्लीज। मीटिंग लीव होगी फिर से, बुरा मान गए मेरी बात। चले, एनी हाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द टास्क। आज हम टास्क के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज शेयर करते चलूं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स जो है वो थोड़ा बोर हो रहे थे सॉन्ग क्रिएशन से। कल हमारा कोई सॉन्ग नहीं था इसलिए मैंने सॉन्ग क्रिएशन की पिछले 2 दिन से कोई बात नहीं की, लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से बताऊंगी कि हम सॉन्ग की बजाय उसी टॉपिक पे एक डिफरेंट चीज जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि वो म्यूजिक, ये सेकंड टेड टॉक है, लास्ट टेडx 2016 का है और ये वाला 2025 का है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच बिग भाई। अच्छा, हम जो है वो आज ये सीखेंगे कि अगर हमें सॉन्ग क्रिएट नहीं करना, हम एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट्री। तो आप डॉक्यूमेंट्री कैसे बना सकते हैं और उसका क्या तरीकेकार है। ठीक है मिस लैला, आपको कोई सवाल है? जी मैम, मेरा ना जूम का मसला आ रहा था, तो कल आपकी एक मुझे बड़ी प्यारी सी वीडियो नजर आई जिस पे आप हमें सिखा रही थी उर्दू में, और बड़ी एक उसमें बनी हुई थी। मैंने आपका पूरा यूट्यूब चैनल खंगाल लिया, मुझे वो नजर ही नहीं आई कहीं। मेरी बहन ऐसी कोई चीजें मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करती, इतना टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है मैं बैठ के सारी ये चीजें सिखा 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 के वहां पे अपलोड करूं। ये मुझे स्पेशल एक रिक्वेस्ट की गई थी 10 बार, तो फिर मैंने थोड़ा टाइम निकाल के जूम बना लिया और जूम की रिकॉर्डिंग कर ली और वो मैंने करके संभाल ली कि जब भी किसी को जूम की समझ नहीं आ रही तो उसको मैं शेयर कर दूं। जो अच्छा मैंने अभी मैम, दोबारा फिर से शेयर कर दी है, आपके ग्रुप में है, मेरे चैनल पे किसी पे नहीं मिलेगी आपको ये वीडियो। दो अच्छा कि मुझे बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि ये भी वीडियो बना के डाल दे, ये भी डाल दे, पर इतना टाइम नहीं होता है कि मैं वीडियोस बना बना के अपलोड करूँ। अपने जी टास्क मैम। पूरे नहीं कर पा रही है, कैसे करूँ? मैम वही उर्दू वाली जो कल आप हमें सिखा रही थी वो मुझे काफी अट्रैक्ट की, तो मैं खुद से ढूंढती रही, मैंने पूरा घंटा लगाया, मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने कहा चले मैम से ही पूछूंगी, वो बहुत अच्छे से वो यहाँ स्टेप बाय स्टेप सारा बताया हुआ था उर्दू में। उर्दू में? जी जी, उर्दू में भी थी, यहाँ जूम पे कल आपने अपनी एक वीडियो पे हमें सिखा रही थी जिस पे।
मुझे नहीं पता कल मैंने कौन सी वीडियो सिखाई वो है, अगर मैम किसी को वो याद है। कैनवा में जो आप बता रही थी ना कि आप प्रेजेंटेशन को अच्छा वीडियो में अच्छा, कैसे गॉट जोड़ना है इट वो गॉट इट। वाला। वो मैंने उलमाए किराम के लिए बनाई थी, क्योंकि हम उलमाए किराम को भी क्लास दे रहे हैं, तो वो जूम की जो पूरी प्रेजेंटेशन थी मैंने वो उनके लिए बनाई थी, ताकि वो उर्दू को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उनके लिए थोड़ा इंग्लिश को समझना मुश्किल होता है, तो वो प्रेजेंटेशन मेरे एक फेलो फैसिलिटेटर हैं मुफ्ती एहसान हुसैनी साहब, उनको चाहिए थी, तो उनके लिए अच्छा बनाई थी मैंने, ताकि वो वहां पे प्रेजेंट कर सके। और अगर आप में से चाहिए तो मैं वो भी शेयर कर दूंगी आप जी सबके जी साथ। मैम शेयर करें, पर आपकी ये स्टूडेंट उसको ढूंढ ढूंढ के मैंने घंटा डेढ़ लगा दिया कि मैं मैम ऐसी कोई की ये चीज चीज यही मुझे शेयर नहीं मिल करती जाए कहीं पे। लैला, आइंदा अगर कुछ चाहिए तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर देना, मैं भेज अच्छा दूंगी, मेरे मैम को मुझे भेज ये देती। भी बड़ा एक वो शर्मिंदगी होती है तंग करते हुए कि पता नहीं मैम कितनी बिजी होंगी, अब मैं इनको मैसेज करते करते छोड़ देती हूँ। कोई जब मसला नहीं, आप कर लिया करो, जवाब मैंने फिर भी अपने हिसाब से ही दे दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके। अच्छा जी, आज हम सीखेंगे डॉक्यूमेंट्री किस तरह से हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी है मेरी, आई होप कि स्क्रीन सबके लिए शेयर्ड होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी पे आ गए। आज के सॉन्ग की ही डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाए, और अगर आप चाहें तो जो पिछले सॉन्ग जिसने नहीं क्रिएट किए तो वो इस फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपके व्हाट्सएप से ही उसको कॉपी करूं आज का लिंक। द एसेंस ऑफ बलोचिस्तान, द म्यूजिक ऑफ सेंस। अच्छा जी, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। अब हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे, ये मैं प्रॉम्प्ट लिखती हूँ और मैं इसी तरह से ही लिखती हूँ जिस तरह से मैं भी आपको गाइड करूंगी। सॉरी, मेरी स्पेलिंग बहुत खराब है, और एआई के आने से और खराब कर ली है मैंने कभी इन पे तवज्जो ही नहीं दी कि मैं अच्छे करूँ। ओके, जब भी मैं प्रॉम्प्ट लिखती हूँ तो जिस तरह से हमने काम करवाना होता है चैट जीपीटी से, मैं चैट जीपीटी को कहती हूँ कि बिल्कुल उसी तरह से आप एक्ट करो, कि आप एक वीडियो एडिटर हो या आप एक होस्ट हो और आपने एक इंटरव्यू कंडक्ट करना है और ये टॉपिक है, तो इस पे बताओ कि किस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर कर देती है, फिर एक होस्ट की तरह जो है आप सारी पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर देती है कि एक होस्ट को किस तरह से इस टॉपिक पे इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहिए। अब वो अगर आप गेस्ट का पूरा रेफरेंस दे देते हैं कि गेस्ट पाकिस्तान से है, उसकी ये एक्सपर्टीज है, वो ये करता है, इस एरिया से है, इस लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट है, तो वो सारी चीजें जब आप बता देते हैं तो एआई आपके लिए बहुत अच्छे से आपका पूरा एक प्री व्यू इंटरव्यू जो है वो आपको प्रिपरेशन करा देता है। सिमिलर मैंने में जब भी मुझे कोई वीडियो बनवानी होती है चैट जीपीटी से, मुझे जो है जब भी मैं डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करती हूँ तो मैं इसी तरह से इसको दोबारा से जो है वो ट्रेन करती हूँ कि आप खुद इस सारे प्रोसेस से गुजर रहे हो और आप बताओगे कि किस तरह से मैं इस वीडियो को क्रिएट कर सकती हूँ। और मुझे हर सीन की डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े कि मैंने किस सीन को किस तरह से प्लॉट करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगी, अब ये अपना काम शुरू कर देगा। इतनी देर में मैं इसके साथ ही एक दूसरी वेबसाइट ओपन कर लूंगी, ठीक है, जो कि है 11 लैब्स, ठीक है। अब ये 11 लैब्स क्या करेगी, 11 लैब्स आपके टेक्स्ट को वॉइस ओवर कर देगी, ठीक है, मतलब टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट कर देगी। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो पहले हम सुनो डॉट एआई से कन्वर्ट करा देते हैं और वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और इसके अंदर पूरे लिरिक्स को वॉइस ओवर कर देता था। अब हम क्या करेंगे, हमने एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करनी है, तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करते हैं तो उसके पीछे जो है ना वॉइस ओवर होता है, ठीक है। और वो इंग्लिश में हो सकता है, उर्दू में हो सकता है, किसी भी अब लैंग्वेज में जिसमें चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप वो वीडियो बना लेंगे। सिमिलर मैनर में
आपके पास अब वो बंदा होना चाहिए जो इसके साथ साथ वो लिरिक्स पढ़ दे, आपके वो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ दे आपको। आप अपनी आवाज में भी इसको स्क्रिप्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो किसी एआई में भी करा सकते हैं। तो एआई के लिए 11 लैब्स आपके साथ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। हम 11 लैब्स का फर्स्ट वाला लिंक भी ओपन कर सकते हैं, ये वाला लिंक भी ओपन कर सकते हैं, जिसपे आप कंफर्टेबल है वो कर ले, बट कीप इन माइंड कि स्पॉन्सर्ड लिंक को क्लिक नहीं करना, ठीक है। अब मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पे आते ही सबसे पहले आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने साइन अप किया, मेरा ऑलरेडी साइन अप है तो आपको नेक्स्ट स्टेप्स नहीं मिलेंगे। जब आपने फर्स्ट टाइम साइन अप करना है तो आपसे आपकी ईमेल पूछेगा, ईमेल से कनेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका फिर वो साइन अप कर देगा, जैसे हम अभी बाकी सारे एआई को कनेक्ट करते हैं उसी तरह से इस एआई को आप कनेक्ट कर लेंगे। अब कुछ ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बॉटम में आपका वो जो जिस ईमेल के साथ आपने कनेक्ट किया वो ईमेल आपको शो हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, और बाकी यहाँ पे इसके जो फीचर्स हैं वो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मुझे टेक्स्ट टू स्पीच बनाना है ना, जैसे ये वॉइस ट्रेनर है, साउंड इफेक्ट्स है, वॉइस आइसोलेटर है, आपको जो चीज चाहिए वो यहाँ पे आप करा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे टेक्स्ट टू स्पीच चाहिए तो मैं टेक्स्ट टू स्पीच पे कन्वर्ट क्लिक कर दूंगी, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी इसका पूरा इंटरफेस चेंज हो जाएगा। अभी ये मैं एक वीडियो जनरेट कर रही थी, उसका वॉइस ओवर चाहिए था मुझे, वो मैंने इससे जनरेट किया, ठीक है। अब ये हमारे पास वर्ड लिमिट है 5000 वर्ड्स की, कि ये 5000 वर्ड्स को जो है वो वॉइस ओवर कर सकता है। अगर मोर देन 5000 वर्ड हुए तो ये उनको वॉइस ओवर नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने पूरा टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर देना होता है, और उसके बाद राइट साइड से ये जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है सेटिंग के साथ, देखिए यहाँ वॉइस लिखा हुआ है। वॉइस में जैसे आप इस एरो पे क्लिक करते हैं, इस एरो पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ बहुत सारे जो है वो आपको वॉइस ओवर नजर आ जाएंगे, ठीक है। अब आप इनको, ये जो प्ले बटन है ना, इस पे क्लिक करके आप इनका वॉइस ओवर सुन सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपके लिए साउंड शेयर कर दूं ताकि आप लोग उसको सुन लीजिए। जैसे भी मैंने इस पे क्लिक किया, The thing always happens that you really believe in, and the belief in a thing makes it happen. सी आप जिस As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. You got to be careful if you don't know where you're going because you might not get there. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. There is no greater harm than that of time wasted. Life without love is like a tree without blossoms or fruit. तो आप जैसे ये येलो टिक के साथ आपको शो होगा तो ये आपके प्रीमियम वर्जन यानी प्रो वर्जन के लिए आपको अवेलेबल है। फ्री वर्जन में ये 3 आपके लिए अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे आपको जो है वो फ्री वर्जन में अवेलेबल है। तो जो आपको अच्छा लगता है उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वो आपको शो हो जाएगा। जब वो यहाँ पे शो होगा आप क्या करेंगे, ये अब आपको समझ आ गई। पहले यहाँ पे ब्रायन था, अब मैंने बिल को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो आप इनकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये नॉर्मल स्पीड पे बात करें तो अभी ये 1 पे है। आप चाहते हैं थोड़ा ज्यादा स्पीड अब बात करें तो इसको जैसे पॉइंटर को राइट साइड मूव करते जाएंगे उतनी स्पीड इसकी जो स्क्रिप्टिंग की है वो हाई होती जाएगी। स्टेबिलिटी है, अगर आपने मॉडरेटर रखनी है तो 50% पे है, और जैसे जैसे राइट साइड पे आप चलते जाएंगे उतनी ज्यादा हाई हो जाएगी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए आपको कितना क्लियरली समझ में आ रहा है कि कोई वर्ड कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप बहुत अच्छे लिसनर हैं तो अगर आप थोड़ी स्टेबिलिटी हाई भी कर लेंगे दैट्स प्रीटी ओके। सिमिलैरिटी यहाँ पे है वो लो टू हाई है, इसके भी नोट्स आप चाहे जितने ज्यादा पॉइंटर को राइट साइड को मूव करते जाएंगे उतने ज्यादा आप इनको जो है हाई नोट्स पे लेते जाएंगे। उसके बाद है स्टाइल एग्जैजरेशन। अब ये स्टाइल एग्जैजरेशन ये होता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो जब आप राइट साइड पे पॉइंटर मूव करेंगे तो वो एक एक जो वर्ड का लेटर है उसके साथ उसको प्रोनाउंस करेगा, जिसको फोनिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एग्जैजरेशन के साथ पूरी प्रोनाउंसिएशन के साथ वो पूरा वर्ड आपके साथ प्रोनाउंस करे, या सिलेबल्स होते हैं, अगर वो हर सिलेबल को अलग अलग प्रोनाउंस करे तो आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे ये टॉगल ऑन बाय डिफॉल्ट ऑन है, मैंने नहीं किया हुआ। स्पीकर बूस्ट ये बाय डिफॉल्ट ऑन, अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो ये जो स्पीकर है उनकी जो बूस्टिंग है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको रीसेट करनी है तो यहाँ पे वैल्यू रीसेट पे क्लिक करके इसको रीसेट कर सकते हैं। ये थी हमारी सारी की सारी 11 लैब के बारे में इंफॉर्मेशन। जैसे ही हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो पुराने वॉइस ओवर करने आपने जनरेट करवाया हुआ है तो वो यहाँ पे आपको सारे इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसे मैंने अगले दिन भी बताया था कि जब हम किसी भी
एआई टूल को अपनी ईमेल से कनेक्ट कर देते हैं तो वो आपके लिए अपनी सारी हिस्ट्री सेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, आप इस चीज से बिल्कुल ही डरे कि कोई भी एआई टूल आपके जीमेल के अंदर जाके आपकी जीमेल की स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। नहीं, वो आप कोई भी आपका जो ईमेल की स्पेस को या गूगल ड्राइव को ऑक्युपाई नहीं करता। वो आपकी जो ईमेल आएगी उन्हीं के थ्रू ऑक्युपाई होती है। आपके किसी भी एआई टूल कनेक्ट करने से आपकी गूगल ड्राइव जो है वो ऑक्युपाई नहीं होगी। हाँ, आपका हर एआई टूल आपकी ईमेल से कनेक्टेड होने की वजह से अपने अंदर ही इटसेल्फ सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए सेव करता रहता है हिस्ट्री के तौर पर। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी ने क्या काम किया उसको देख लेते हैं, जिसको प्रॉम्प्ट दे के आए थे हम। ओके जी, चैट जीपीटी ने हमारे लिए क्या किया कि टाइटल भी लिख दिया कि इस टाइटल पे बनानी थी, ड्यूरेशन भी उसने बता दी। अब नरेशन शुरू हो गई। उसने बताया कि पोएटिक होगी, सिनेमैटिक होगी, डीप वॉइस ओवर होगा विद ट्रेडिशनल और रीजनल म्यूजिक अंडरटोन्स। इस तरह से उसने आपकी नरेशन बना के दी है। अब ये जो नरेशन है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो पहला सीन उसने 10 सेकंड का जनरेट करके दिया है। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करने के बजाय हम पहले टाइटल से कॉपी करेंगे ताकि हमारा टाइटल का भी वॉइस ओवर हो जाए। तो पहले हमने टाइटल को कॉपी किया और 11 लैब्स में आए और ये जो बड़ा सा स्क्वायर था रेक्टेंगल वाला इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया। एंटर प्रेस करेंगे और अब हम दोबारा से चैट जीपीटी पे आएंगे और पहले सीन की नरेशन को कॉपी करेंगे ताकि हमारा जो पहला सीन है उसकी वॉइस ओवर हम जनरेट कर सकें। अच्छा, ये सीन बाय सीन नहीं आपने करनी। ठीक है, वॉइस ओवर आपने एक साथ सारी वॉइस ओवर जनरेट करवानी है, लेकिन आपको कॉपी सीन बाय सीन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पूरा कॉपी कर लेते हैं ना तो वो जो हमारी डिस्क्रिप्शन है हर सीन की वो भी कॉपी हो जाएगी। वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ चाहिए उस सीन की डिस्क्रिप्शन कि अच्छा वॉइस ओवर क्या होगा। उस वॉइस ओवर के लिए हमें जो नरेशन है सिर्फ वो चाहिए। तो हम सिर्फ इसी को कॉपी करेंगे, बाकी की किसी चीज को हमने कॉपी नहीं करना। अच्छा, इसने म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए शेयर किया था क्योंकि ये टाइटल ऐसे हैं जिन पे आपका म्यूजिक ही अप्रोप्रिएट लगता है। ठीक है, क्योंकि इस वाली वॉइस ओवर में आपने देखा है कि कोई म्यूजिक नहीं ऐड हो सकता। ठीक, इसलिए उसने आपको म्यूजिक फॉर्म में रिकमेंड किया कि आपके जो आप वॉइस ओवर जनरेट करें उसके अंदर प्रॉपर म्यूजिक होना चाहिए। लेकिन आप 11 लैब्स के अंदर तो कोई म्यूजिक होता ही नहीं है, तो इसलिए ये जो जनरेट करके देगा ये विदाउट म्यूजिक आपके लिए जनरेट करेगा। ओके जी, इट्स डन। अब हम चलते हैं अपने 11 लैब्स पे। यहाँ पे लास्ट पे देखेंगे तो ये वर्ड काउंट के साथ आपको जनरेट स्पीच नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे वर्ड काउंट भी आपको गिवन है, 5000 वर्ड काउंट था और उसने कहा है कि आपने 918 क्रेडिट्स आपके रिमेनिंग रह गए और इतने क्रेडिट्स आपने यूज करने थे वो कर दिए। जैसे जनरेट स्पीच पे क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए स्पीच जनरेट करना शुरू हो जाएगा। ओके, unusual activity detected heat। अच्छा, आज की जो मेरी लिमिट थी वो पूरी हो चुकी है क्योंकि मैंने अभी सुबह में 2 डिफरेंट जगह पे इसको यूज किया था और मेरे जो आज के क्रेडिट्स है वो खत्म हो गए। लेकिन जब आप लोग यूज करेंगे, अब वो मुझे कह रहे हैं कि वीपीएन ऑन करके आप इसका फ्री ट्रायल यूज कर सकते हैं या ऑफिस या स्कूल के लिए। तो खैर मुझे तो अभी फ्री ट्रायल नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इस सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपके लिए ये जो वॉइस ओवर है वो जनरेट हो जाएंगे। अभी फिलहाल मैं आपको वो वॉइस ओवर सुना देती हूँ जो कि ऑलरेडी जनरेटेड है इसके थ्रू।
ये एक वॉइस ओवर मैंने कोई 3 हफ्ते Title? पहले जनरेट किया था। Title: How AI Can Enhance Everyday Life. Every day begins like any other, but behind the scenes, artificial intelligence is making life easier, faster, and smarter. Smart assistants help us set reminders, adjust room temperature, and even brew coffee, all with a simple voice command. From music and movies to shopping and food, AI curates our preferences, saving time and enhancing. अच्छा, अब जैसे ही आपका वॉइस ओवर जनरेट कर देगा, इसके यहाँ पे राइट साइड पे आपको कॉर्नर में डाउनलोड का ऑप्शन नजर आएगा इन्वर्टेड एरो के साथ। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वॉइस ओवर ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके आपके लैपटॉप के डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा। जब ये वहां पे आ जाएगा, उसके बाद आप जैसे कैनवा पे बाकी सारे सीन्स अपने क्रिएट करते हैं, सॉन्ग क्रिएट करते हैं, उसी तरह से इस वॉइस ओवर को आप ऐड कर लेंगे कैनवा के अंदर और फिर वहां से आप अपनी एक वीडियो जनरेट कर सकते हैं कैनवा को यूज करते हुए। ठीक है, तो इस तरह से बजाय इसके कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि वो म्यूजिक को यूज करे और वो किसी भी तरह का म्यूजिक जो है वो उसको नहीं जो है वो ऐड करना चाह रहा अपनी किसी भी फर्दर टास्क में, तो वो इस तरह से एआई जनरेटेड वॉइस को यूज करते हुए अपनी कोई भी वीडियो जो है उसको क्रिएट कर सकता है। बट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप इन जो पॉइंट आपके साथ शेयर किए गए हैं पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों के नाम और इनका जो एक ब्लेंड के साथ आपके साथ एक जो है वो भेजा गया है टाइटल, तो उनको अगर आप suno.ai से बनाएंगे तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई एआई से रिलेटेड आपके पास टॉपिक्स आते हैं ना, तो उनको आप इस एआई से जनरेट कीजिएगा और फिर उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, वो ज्यादा अच्छी लगती है डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में। लेकिन अगर कोई ऐसा पाकिस्तान का आपके पास टाइटल आता है जैसे जिसमें पाकिस्तान के कल्चर या कोई लैंग्वेज या कोई जो है उसके बारे में बात की जाए, तो फिर आप डेफिनेटली एआई को यूज कर लीजिए। लेकिन अगर वो किसी नेचर या ब्यूटी की बात करता है तो उसमें ज्यादा सॉन्ग और इंस्ट्रूमेंट नहीं अच्छी लगेगी, ये डॉक्यूमेंट्री नहीं अच्छी लगेगी। बाकी चॉइस आपकी है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। डॉक्यूमेंट्री चाहे तो डॉक्यूमेंट्री क्रिएट कर लें, और अगर डॉक्यूमेंट्री के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसके अलावा वो भी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी सॉन्ग जो है वो क्रिएट करना चाहे वो। मैम एक बार दोबारा से बता दो प्लीज, एआई वाला। इशाल दोबारा पूछना। मैम एक दफा दोबारा से बता दो प्लीज कि जब डॉक्यूमेंट्री मतलब हम कब यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री का क्या कह रहे हैं आप? मैम कब यूज कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट्री के मैंने कहा है कि जब आप एआई से रिलेटेड आपके पास टॉपिक्स आए ना, कि आपने एआई से रिलेटेड टॉपिक्स जो है उनके आपने सॉन्ग्स क्रिएट करना है, तो उसको आप डॉक्यूमेंट्री में क्रिएट कर लें। और अगर पाकिस्तान से रिलेटेड पाकिस्तान की नेचर और पाकिस्तान की जो है वो रिसोर्सेज के बारे में बात की जा रही है, पाकिस्तान के 2 डिफरेंट शहरों को मर्ज करके एक टॉपिक दिया जा रहा है, तो फिर आप सॉन्ग क्रिएट कीजिएगा, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। जी मीरम। मैम इसके अंदर किसी वीडियो के लिए वॉइस ओवर बना सकते हैं, रेडी कर सकते हैं? बिल्कुल, आप अपनी वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। आप पूरी जो आपका टेक्स्ट है उसको अपनी उसमें भी रिकॉर्ड करके और उसको रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, किसी और वीडियो के लिए भी? जी बिल्कुल। और मैम यहाँ पे चूज योर प्लेटफॉर्म आया, जब मैंने खोला है तो क्रिएटिव प्लेटफॉर्म क्लिक करना है या कन्वर्सेशनल एआई को क्लिक करना है? किस पे प्लेटफॉर्म पे पूछ रही हैं आप? एक मिनट। अगर आप 11 लैब्स पे आपको ना साइन अप करना है, तो वहां पर ऑप्शन, तो जब आप साइन अकाउंट अप के साथ ही ना नीचे लिखा हुआ है साइन अप विद गूगल, ठीक है, तो आप गूगल के ईमेल को कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी ईमेल डायरेक्टली वो पिक कर लेते हैं। वो वहां से हो गया। उसके बाद आगे 2 ऑप्शंस आए, क्रिएटिव प्लेटफॉर्म और कन्वर्सेशनल एआई। आप स्क्रीन शेयर कर दें ताकि मुझे समझ में आ जाए। एक मिनट मैम। ओके जी, आसिफ भाई आपका क्या सवाल है? हम इससे कितने वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं? लिमिटेड होती है, इसके क्रेडिट होते हैं? जी, इसके क्रेडिट्स होते हैं, और इसके क्रेडिट जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि मेरे आज के खत्म हो गए, मैंने तो वो 2 क्लासेस की और बताया इसके बारे में, इसलिए मेरे क्रेडिट आज पूरे हो गए। हाँ, अगर आप इसको डे टू डे यूज करते हैं तो वो जो नीचे जहाँ पे वॉइस ओवर जनरेट करवाया था ना मैंने, उसकी लेफ्ट साइड पे उसने मुझे लिखा था इतने क्रेडिट यूज हो गए और ये बाकी रह गए 918।
तो वो 918 में अगर तो वो पूरा वॉइस जो मैंने दिया था वो तो हो गया तो ठीक है, टोटल 5000 पॉइंट्स थे, उनमें से इतने इतने आपने यूज कर लिए, इतने रह गए, कुछ इस तरह करके उसने लिखा हुआ था। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको जो है वो यूज करते हैं। डेली क्रेडिट मिलते हैं? आसिफ भाई मैंने कभी डेली इसको यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने जैसे भी आपको बताया कि मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं एक एआई टूल को रोजाना यूज कर पाऊँ। तो मैंने आज इसको मई के बाद आज खोला है, मतलब 2 महीने के गैप से मैंने आज इसको यूज किया है। ठीक है, सही है। बहुत शुक्रिया जी मिस सोलत। मिस इद्रा, क्या सवाल है आपका? अभी स्कूल में जी मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया कि डॉक्यूमेंट्री के लिए हमें ये वाला टूल यूज करना है, और अगर सॉन्ग्स वगैरह करने हो तो सॉन्ग्स के लिए हम लोग कौन सा टूल यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम suno.ai को यूज करते हैं और वो एक डिफरेंट है। ओके, सही, ठीक है, ओके, थैंक यू। यू वेलकम जी। मिस सोलत आप कुछ कह रही थी, आपका इंटरनेट लैग कर रहा है। जी मैं तो आज लाइट नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है। जी जी बताइए। मैं ये कह रही थी कि जैसे हम स्कूल में ये भी उसी तरह है? स्कूल में आगे क्या था वो मिस हो गया। मिस जो सोलत आप वीडियो क्या बनाते हैं वो भी इसी तरह की होती है? एग्जैक्टली हम वो जो इसी तरह रिहान को बनती है सिस्टम में या फिर थोड़ा सिखाते सा हैं, हाँ इट्स सेम, मिस सोलत दोनों सेम है। बच्चों को जो है वो डॉक्यूमेंट्री सिखाई जाती है, उनको ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर करवाई जाती है, लेकिन उनको साथ में suno.ai भी करना है, वो दोनों करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कम है ना, बच्चों का तो प्लान पूरा 1 ईयर का है और वो लेवल 1 पूरा कंप्लीट करते 1 ईयर में, तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कम है, इसलिए थोड़े टाइम में कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इंट्रोड्यूस करवा दी जाए। मैम मैं शेयर करूँ स्क्रीन? ठीक है, जी मेरे आप स्क्रीन शेयर कर लें। मिस इधर आपका कोई और सवाल है या वही सवाल था, आपका हैंड रेज है अभी भी? नहीं मेरा वही सवाल था, सॉरी मुझे नो इशू नो याद इशू। जी। जी फरूक भाई आपका क्या सवाल है? अच्छा, इसमें जो 11 लैब्स में वॉइस ओवर का ऑप्शन है, इसके अलावा भी इसमें कोई और ऑप्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं 11 लैब्स में? जी बिल्कुल है, जैसे मैंने बताया ना, राइट साइड से आप उसका पूरा वो जो मेन्यू है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारी और ऑप्शन भी मिल जाएंगे। अब आपको किस ऑप्शन की तलाश है वो आप उसका मेन्यू देख के आप देख ले कि आपको क्या चाहिए। ठीक है जी आसिफ भाई। मैम इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं? हाँ वॉइस ओवर वॉइस के ओवर लिए? के लिए अगर आपको कोई और अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जो कि एआई से रिलेटेड है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जी जैसे फ्री एक वाले हमें हैं बहुत जब मैं शुरू शुरू में इस सिस्टम को 1 साल पहले जब मैंने यूज करना शुरू किया, और मैंने 1 साल पहले जब इस पे काम किया था, हम यूज करते थे टीटीएस मेकर, मुझे उस पे सिखाया गया था और मैंने उसी के थ्रू बहुत जितनी भी पहली 10 डॉक्यूमेंट्रीज अपनी बनाई जो कि बहुत अर्ली एज की थी, तो वो मैंने टीटीएस मेकर पे बनाई थी। जी मूसा भाई 1 सदी पहले, अब तो बहुत बुरी हो गई ना, तो वो जो मैंने पहले बनाई थी तो वो टीटीएस मेकर से बनाई थी, दैट्स टेक्स्ट टू स्पीच वेबसाइट, वो उसके थ्रू करते थे। अब उस पे क्रेडिट्स आते हैं, आप लाइक आपको पे करना है तो वो आपको वॉइस ओवर जनरेट करके देता है, अदरवाइज आप उस पे वॉइस ओवर जनरेट नहीं कर सकते। और वो उसका जो आउटर था ना लुक, वो बहुत ही ज्यादा इजी टू हैंडल था और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना ये 11 लैब्स का है। लेकिन 11 लैब्स फ्री है, उसमें अब क्रेडिट्स लगते हैं। अब वो कहता है कि भाई 1 साल तुमने बड़े मजे कर लिए, अब तुम पैसे इसके वो फ्री में अब नहीं आते। ठीक है जी लाइव। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कॉन्वर्सेशनल एआई पे क्लिक कर दें और कंटिन्यू कर दें। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हम लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे सिर्फ जो रेहान स्कूल के टास्क मिले सिर्फ वही डाल सकते हैं, उसके अलावा नहीं कुछ डाल सकते? नहीं नहीं आप आजाद हैं, आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। आप भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं, आप कुछ भी अपलोड कीजिए, लेकिन रेहान स्कूल के टास्क मस्त रेहान स्कूल के टास्क मस्त है। अच्छा ठीक है, मैं कहती हूँ मत दें। मस्त है। हाँ अब आप
जब यहाँ पे आएंगी और उसके बाद आप जो जो इस एक्सप्लोर करती जाएंगी मेरे, फिर आपको वो वैसे वैसे टास्क मिल जाएंगे। ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, ओके जी। लाइबा कोई और सवाल है इसके अलावा? नहीं, okay. Okay, participants, I'm sharing the today's TED Talk link. Today's TED Talk is really related to our current scenarios. Let's teach for mastery, not test scores by साल खान। और मैं ऑलरेडी इस वीडियो का लिंक जो है वो शेयर कर चुकी हूँ आपके डेली टास्क ग्रुप में व्हाट्सएप में, और अभी मैं शेयर कर रही हूँ जूम पे, और आप इसको जरूर सुनिएगा और उसके बाद हम अपना रिव्यू सेशन कंडक्ट करते हैं। और राहुल भाई, आपने वीडियो सुननी है और आपने रिव्यू देना है। ओके मैम। Okay guys, today's video is 10 minutes and around 45 seconds longer. I'll just give you 11 minutes. मैं आपको सिर्फ 11 मिनट दे रही हूँ। 10 के 13 मिनट हो गए और आपने 10 बज के और 24 मिनट पे वापस ज्वाइन करना है। तो राहुल भाई टाइमर प्ले कर दे 11 मिनट्स का, एंड देन विल वॉच द टेस्ट। जी लाला। मैम मैंने ना पिक्चर सेंड की है बना के, वो ना एक रेड सिग्नल आ रहा है, उससे रीस्टार्ट करने से या फिर दोबारा लिंक ज्वाइन करने से कभी कभी ये ठीक हो जाता है, बट मैं सुनना चाह रही थी कि आप क्या दे रही हैं, ये ना हो मैं दोबारा कनेक्ट ही ना हो पाऊँ। तो अगर आप कहें तो फिर मैं एक दफा कर लूँ ट्राई, रीज्वाइन कर लूँ। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। ओके ओके। I shared the link in the Zoom chat as well as I shared the link in WhatsApp group. Go and watch the TED Talk and be right back after 11 minutes. मैम ये वही टेड टॉक है जो पहले भी देखी थी? जी मैम, ये हम पहले देख चुके हैं। इसका रिव्यू दिया था हमने पहले, ये वही तो है शायद। ये वही है। सो हाँ मैं भी देख ये रही पहले हूँ। वाला है, मैम पहले ये वाला पहले है। ऑलरेडी देख चुके हैं। मैम ये सेकंड हमारा टेड टॉक था। या अल्लाह, ये देख मैंने चुके क्या हैं, रिव्यू किया? भी दे चुके हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट होल्ड होल्ड। एक कैसे हो गया? डे 3 था और वीक 3। अच्छा मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए हो गया होगा। अच्छा, ये आप हमने थोड़ा देखी है रेस्ट भी कर अलेक्जेंडर लिया वैंग करें। की। एक मिनट, हमने अलेक्जेंडर वैंग की टेड टॉक देखी है, व्हाई एआई विल नेवर रिप्लेस ह्यूमंस। यस मैम। क्या बात है, बच्चों को मुझसे ज्यादा याद है, मुझे भूल क्यों जाता है ये चीज। पहले भी एक क्लास में मैंने ऐसे है। बाबरा ओकले भी हमने देख ली। मैम मेरा ख्याल है कि जो TEDx टॉक ये दो हैं, एक 2016 की है और एक 2025 की है। 2016 का जो टाइटल है उसमें AI को एक फोकस नहीं किया गया, और हमने 2025 की जी जो TEDx टॉक है। रफीक भाई, एक मिनट मुझे दीजिएगा। हमने इससे पहले जो साल खान की वीडियो देखी वो हमने देखी है हाउ एआई कुड सेव एजुकेशन। हमने इस पे टेड टॉक देखी है साल खान की। मैस्ट्री वाली जी तो हमने नहीं देखी मेरे ख्याल में। जी मैम बिल्कुल। ये हमने वाली तो देखी है, वो नहीं देखी। ये वाली देखी है, वो मिस्ट्री वाली नहीं वाली देखी, देखिए, ए मिस्ट्री वाई वाली। वाली नहीं देखी। गॉट इट। ओके जी, मैं आप आज आपको शेयर कर दूँ। मुझे लगा हमने वो पहले देखी है। एक मिनट दीजिएगा मुझे, बस इसका लिंक चेंज कर देते हैं आज की टेड। राहुल भाई टाइमर हटा दें, उसका टाइमर ज्यादा है, वो ज्यादा लंबी वीडियो। ओके जी पार्टिसिपेंट्स, टुडेज टेड टॉक इज 15 मिनट्स लॉन्गर। अभी से आपके 15 मिनट शुरू होते हैं। 15 मिनट के बाद आप दोबारा क्लास को ज्वाइन करेंगे।
और 15 मिनट में आप ये टेड टॉक देख लें। हम शेयरिंग द लिंक विद यू। ये वाला लिंक आपके लिए भेज रही हूँ जूम चैट पे। मैं व्हाट्सएप का भी लिंक चेंज कर लूँ। जी गाइस, आई शेयर द लिंक इन द जूम चैट। ये टेडॉक्स मिस मरियम, ये वीडियो देखने के बाद दोबारा क्लास में आना है? जी जी, ये वीडियो देखने के बाद दोबारा क्लास में आना। राहुल भाई 15 मिनट का आप टाइमर प्ले कीजिएगा।
Okay, dear participants, please turn on your cameras. So we'll conduct our very productive session. वालेकुम मैम, मिस सदफ को काम करवाया, लेकिन वो अब कह रही थी मैंने एक और सेशन ज्वाइन करना है, तो उन्होंने वो चली गई हैं सदफ बाबर। बाकी उनका काम उन्होंने एक क्लास, अच्छा ठीक है, ओके। और जावेद भाई का क्या हाल है? जावेद भाई उनका हो नहीं रहा था, मैंने कहा लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, और लीव ही करके ज्वाइन ही नहीं किया उन्होंने। हाँ, वो यहाँ पे भी आए थे और फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी आपके पास जाने की, तो वो फिर नहीं गए और उसके बाद फिर वो लीव ही हुई। चलिए करती हूँ मैं बात उनकी, उनसे भी, सही से क्लास ज्वाइन कर सके ना हमारी। मैं सदफ को मैंने भेज दिया उनकी, ये डाउनलोड करके। उसके बाद फिर okay, participants who wants to share his or her review voluntarily, please raise your hands and then we'll start. अरे वाह, फरूक भाई जी, फरूक भाई ओके स्टार्ट। जी फरूक भाई, क्या सीखा जी जी, टेड टॉक से? ये जो है जी जी, टेड टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इसमें जो इन्होंने बताने की कोशिश की है वो ये है कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन बच्चों को दी जाती थी, उसमें ये था कि उनको कोई भी एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं और वो डिफरेंट जो भी टेक्निक्स हैं या जो एजुकेशन है वो दी जाती है। और बाय द टाइम होता ही है कि उनमें से बाज बाज बच्चे जो हैं वो तो उसको गेट कर लेते हैं, सम ऑफ देम नॉट गेटिंग व्हाट इट वाज। तो उससे होता है कि कुछ जो में ओबियसली लैकिंग रह जाती है। इसकी एग्जांपल उन्होंने अलजेब्रा की दी कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि वो नहीं ले पाते, एब्सेंट होते हैं या वट एवर द वे। फिर जब एडवांस होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें फिर उनको आगे उस जबरा में इश्यूज आते हैं और फिर उसके अंदर वो आगे फ्लरिश नहीं हो पाते। इसकी एग्जांपल उससे एक बिल्डिंग से भी दी कि जिसकी फाउंडेशन जो है वो अगर तो है, लेकिन ये कि उनको हर तरफ से 100% कॉर्नर लिया गया होता। तो क्या होता है उसमें जब बिल्डिंग बनती है तो वो जब उसको मजीद फ्लोर्स ऐड होते हैं तो वो गिरने का खर्चा होता है। तो अभी जो मॉडर्न जो एजुकेशन इसकी है की बेसिस पे जो है वो इस चीज़ को कोप अप कर लिया गया कि एवरीवन हैज टू आई मीन कोप अप विद दिस विद ओन पेस। ठीक है, ताकि उसकी जो बेस वो 100% स्ट्रांग हो। और इसमें के ऊपर जब वो आगे बढ़ेगा तो यकीनन उसकी जो एजुकेशन होगी वो उसको सॉलिड ग्राउंड्स प्रोवाइड करेगी फॉर फर्दर एजुकेशन, फर्दर मेकिंग हिज पर्सनैलिटी। एंड सो इसी बात के ऊपर उन्होंने फिनिश भी किया था कि इसको जो है उस तरीके पर अगर करेंगे तो ये जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उन थ्रू तो बहुत जल्दी जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो पिकअप करेंगे और वो उसको अपनी इसके लिए जो उनका जो फाउंडेशन है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दैट्स व्हाट। जबरदस्त। एंड फरूक भाई लेफ्ट। ओके, थैंक यू सो वेरी मच फरूक भाई। जी मिस इरम, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया? उन्होंने जो पहले 18th सेंचुरी का केस किया है, उसमें जो उन्होंने वो दिखा रहे थे, ग्राफ दिखा रहे थे, उसमें ये बता रहे थे कि वो कि जो पहले बच्चे जो थे वो बिलो दी एवरेज होते थे, उनको ट्यूटर देते थे तो वो एवरेज में आ जाते थे, फिर उसके बाद जो एवरेज बच्चों को ट्यूटर देते हैं तो वो अच्छे आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं।
तो इसको रिलेट करके उन्होंने अपनी बात शुरू की और उसमें वो ये बोले कि अब हमने जो है ना खान मिंगो एक बना लिया है, एआई असिस्टेंट है जो कि बच्चों को जो है एज अ ट्यूटर बिहेव करवाता है। तो जो लोग आजकल ये बोल रहे हैं कि एआई जो है बच्चों को चीटिंग में हेल्प कर रहा है, तो ये बात ठीक नहीं है। असल में जो एआई है वो बच्चों को लर्निंग में हेल्प कर रहा है। फिर उन्होंने सारी जो है सब्जेक्ट्स की एग्जांपल दी है, इंग्लिश की, मैथ्स की, उसके बाद वो कंप्यूटर की, हर सब्जेक्ट की, कि जो खान मिंगो है वो एज अ ट्यूटर बिहेव करता है। बच्चे जब उससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसको ये नहीं कहता कि आपने गलत बताया है, बल्कि वो ये बोल रहा है कि भाई आपने इसको कैसे किया है। तो जो वहाँ पे बच्चे का दिमाग में गलती है वो उसको ठीक करता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो एआई है हमने उसको इतना इनेबल कर दिया खान मिंगो को, जो उन्होंने अपना बनाया है, कि जो है वो खुद से खुद ब खुद बातें भी करता है और वो खुद को ये समझाता है कि बच्चे को आपने ये नहीं बोलना कि ये आपने गलत बोला है, बल्कि आपने बच्चे को ये बताना है कि आपकी जहाँ ये मिस्टेक है आप इसको ठीक कर लें। उसके बाद आगे वो अपने इसी जो खान अकेडमी को जो अपना वर्क है उसमें बता रहे हैं कि जो हम अगर बच्चों के लिए ट्यूटर का बंदोबस्त करें तो हम टीचर्स के लिए भी जो है असिस्टेंट का वर्क करें। तो अगर हम ये मोड ऑन कर लेते हैं खान मिंगो का कि वो टीचिंग असिस्टेंट बन जाए, तो फिर वो टीचिंग असिस्टेंट में टीचर्स की हेल्प करता है। वो सारे वो जो उन्होंने उसको कमांड दी में वो दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो ये बोल रहे हैं कि जो अब ये जो कंसेप्ट है कि हम लोग कह रहे हैं कि हमें एआई से फियर करना चाहिए कि एआई जो है वो जो है हमें तबाह करेगा या हमें खराब करेगा। तो हम अगर इसको स्लो डाउन कर लें या हम इसको इतनी इंफॉर्मेशन ना दें, तो हम उन लोगों को कैसे रोकेंगे जो कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस के जरिए एआई को यूज करें। हम तो रुक जाएंगे जो कि पॉजिटिव काम करें, लेकिन नेगेटिव वाले नहीं रुकेंगे। इसलिए हमें हेल्प फायर की तरह लड़ना है और हमें एआई को पॉजिटिव क्रिएट करना है, तो ताकि जो है एआई का सिर्फ एक नेगेटिव वर्जन ना पैदा हो, बल्कि उसका एक पॉजिटिव वर्जन भी पैदा हो जाए। और एंड में जो उनका मैसेज था मुझे बहुत अच्छा लगा और ये टेड टॉक मुझे बहुत पसंद आई, कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यही इसका सबसे अच्छा काम होगा। ये मैंने सीखा। Zabardast. Thank you so very much, Miss. And it's Khan Migo. Okay, Khan Migo. Okay. Thank you so very much. जी मिस लुबना, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया? मिस आज की टेड टॉक से ये सीखा कि एआई जो है वो तालीम को बेहतर बना सकता है, तबाह नहीं कर सकता। मसनूई जहानत को हमारा एक परसेप्शन ये बना हुआ है कि शायद ये आ गया तो ये बच्चों को बहुत रॉन्ग साइड पे ले जाएंगे या हम लोगों को से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग इस बारे में सोचते हैं, लेकिन साल खान ये बताते हैं कि ये मसनूई जहानत जो है ना ये इंक्रीज करती है इंटेलिजेंस को, तबाह नहीं करती। लेकिन इसका पॉजिटिव यूज होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो मुझे इसमें हेल्पफुल लगी ना चीज वो ये कि टीचिंग मेथोडोलॉजीज आप यूज कर सकते हैं, इससे स्टोरीज बना सकते हैं क्लास की। अगर टीचर इसको यूज करेंगे तो वो मनसूबाबंदी कर सकते हैं डेली अपने लेसन प्लान्स की। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैं टीचर थी तो हम लोगों को लेसन प्लान डेली बनाने पड़ते थे, तो हम कितने कितने घंटे बैठ के बाय हैंड लेसन प्लान बनाते थे एक टॉपिक के ऊपर। इवन उसके ऊपर उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स, उसके जो है वो पीके टेस्टिंग, उसके जितने भी टॉपिक्स होते थे वो हम लोगों ने खुद से लिखने होते थे। ज्यादा से ज्यादा हम गूगल कर लेते थे, लेकिन हमारे पास जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो हम डेफिनेटली उसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो हमें एक जनरेटेड जो है वो लेसन प्लान मिल जाता है। फिर इसके अलावा जैसे हम यहाँ पे खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, सॉन्ग क्रिएशन कर रहे हैं, हम स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं, तो एआई के थ्रू ही कर रहे हैं। तो मुझे जो आज की टेड टॉक ना वो अपनी इस क्लास के साथ, जो हमारा ये एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट टीचर ट्रेनिंग वाला जो सेशन है, इसके साथ बहुत रिलेटेबल लगी। कि हम वो यही कुछ बता रहे हैं ना कि हम इन सारी मतलब इसको एआई को हम इन इन तरीकों से भी यूज कर सकते हैं, और वो यहाँ पे हम यूज कर भी रहे हैं। बच्चों को ये सिखाना चाहिए। इसके अलावा जो उन्होंने मुझे अट्रैक्ट की इसमें जो वो ड्राफ्ट दिखा रहे थे, जिसमें जब वो क्लिक करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर तो उनके जो खान मिंगो है या इस तरह से कुछ, एग्जैक्टली नाम नहीं मेरे माइंड में आ रहा, वो खान उस मिंगो। पे उसका, हाँ उसमें उसका आंसर भी आ जाता है, और वो कहाँ से मतलब जनरेट हुआ है क्वेश्चन, उसके लिंक्स भी आ जाते हैं सारे। तो ये भी एक हेल्पफुल है कि वहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों को मिल जाती है। तो बहुत इंफॉर्मेटिव थी ये टेड टॉक आज। जबरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच मिस लुबना फॉर शेयरिंग इट। जी शफीक भाई, क्या समझा आज की टेड टॉक से आपने? बेसिकली जो सल्फ खान थे, लास्ट में हमने वीडियो देखी उसमें और इसमें शफीक भाई आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं इस वीडियो से समझा हूँ, बेसिकली तो वो एडवोकेसी कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिस तरह से लास्ट टाइम वो बात कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सा क्रिटिक्स पे जाऊँगा। जिस तरह से आज की जो हमारी ये लाइव सेशन चल रहा है, इसमें आपने एक बात की कि जब से चैट जीपीटी आया है मेरे स्पेलिंग आगे से पीछे हो गए हैं, मतलब वो डिस्टर्ब हो गए हैं।
देखें ये नेगेटिव पहलू भी इसमें हैं। टीचर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि वो लेसन प्लानिंग इससे प्रिपेयर करें। अगर एट वंस कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कंसेप्चुअल बात आ जाती है जिसको आपको बच्चों को दुरुस्त जवाब देना है, तो आप उसके जवाब वहाँ से तलाश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाएंगे, बच्चों को कहेंगे कि वो चैट जीपीटी का यूज़ करें, तो इट मीन्स कि हम उनके माइंड मैपिंग ये कर रहे हैं कि आपको रेडीमेड चीज़ मिल रही है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप चुप करके जाएं खान मिंगो पे, वहाँ पे अपना क्वेश्चन पोस्ट करें, आपको पूरे का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। इट मीन्स कि मैं जब मास्टर्स में था तो हमें एक असाइनमेंट मिली कि आपने एक ना प्रोग्राम पूरा डिज़ाइन करना है जिसमें कोडिंग करनी है कि आपने ना जो टूल प्लाज़ा है उसमें कितनी हैवी गाड़ियाँ गुजरी हैं, लाइट वेट गाड़ियाँ कितनी गुजरी हैं, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ कितनी गुजरी हैं। तो अगर तो हमने अपना माइंड इस्तेमाल ही नहीं करना, सोचना ही नहीं है, तो इट मीन्स के हम किस तरफ जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि फिर हम, दिमाग तो हमारा इस तरह का है कि हम जितना इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ये बढ़ेगा। अगर हम इसे दबा दबा के रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम कोई पॉजिटिव वे में इसको यूज़ करने के काबिल रहेंगे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि चैट जीपीटी पे एक लिमिट लाजमी लगनी चाहिए कि हमने, या ये जो एआई टूल्स हैं इस पे इतनी लिमिट होनी चाहिए कि इंसान अपनी जो कह लें कि एक इंटेलिजेंस है उसको ज़ाया करने से बच जाए, ये लाजमी होना चाहिए। बाकी एक अच्छा उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि चूंकि अब ये दौर चल रहा है एआई का और इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के लोग हैं, तो हम जो नेगेटिव लोग हैं इसका मिसयूज़ ना करें। हमें इसका इस्तेमाल अपने बच्चों को और उन लोगों को जो इसको पॉजिटिवली यूज़ करें उनको सिखाना चाहिए, उनको आना चाहिए। और वो जिस टॉपिक में समटाइम कोई एक टीचर क्लास में एक टॉपिक छोड़ देता है, बाज़ दफ़ा उसे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बाज़ दफ़ा उसे लगता है कि मुझसे ये समझाया नहीं जाएगा या उसे कन्वे करने का मेथड नहीं आ रहा होता। तो इस तरह के टॉपिक के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स जाएं और वहाँ से खुद अपना इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। लेकिन एट दी एंड अपना माइंड शार्प करने के लिए 100% हम रिलाई नहीं कर सकते हैं कि हम एआई टूल्स को 100% यूज़ करें। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शफीक में। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूं कि ये मेरी जो नलायकी है सिर्फ एआई की वजह से नहीं है, ये तो खामखा मैंने एआई पे डाली है। मेरी स्पेलिंग शुरू से ही खराब है और बहुत ज्यादा खराब रही है। लेकिन मतलब मैं शुरू में से ही ये स्पेलिंग याद करने में बहुत बुरी थी, क्योंकि मुझे स्पेलिंग कोई भी चीज याद करना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे कोई चीज समझा देना ये क्यों है, प्रोसेस क्या है, इसकी बेसिक्स क्या थी, तो वो याद रखना बहुत आसान है। लेकिन जिसको क्रैम करना है ना, वो बहुत मुश्किल है। और जहां तक रही बात एआई की ना, तो एआई आपकी क्रिएटिविटी को एनहेंस करता है, तो वो खत्म नहीं करेगा। मतलब मैं अभी आप छोटी सी बात है, मैं कल एक ऐसे, मुझे लिखने का बहुत शौक है और मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई प्लॉट जब भी जहन में आए उसको लिख दिया, वो छोटे छोटे इक्तबास बन जाते हैं। तो मुझे ऐसे किसी ने सजेस्ट किया कि जब आप ये छोटी छोटी चीजें लिखते हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए वो पूरा प्लॉट आप एआई को दे दे, तो एआई आपके लिए पूरी एक स्टोरी या पूरी एक नैरेटिव लिख देगा, जो कि आपके लिए वो एक अच्छा खासा कॉलम बन सकता है। मैंने यही काम किया। मैंने अपना छोटा सा वो जो इक्तबास था या जो प्लॉट सीन था मेरे जहन में, मैंने वो सिर्फ एआई के साथ शेयर किया और उसने वो पूरी स्टोरी बड़े अच्छे से वो लिख के दे दी कि अच्छा, इसको इस तरह से हम इस पूरे सीन को फॉलो करते हुए हम इस तरह इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एआई को आपके यूजेज पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज करेंगे और कितनी अपनी क्रिएटिविटी को इनहेंस कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे यहाँ पे हमारे बहन भाई हैं जिनको बहुत छोटे छोटे आइडियाज आते हैं, लेकिन उन आइडियाज को एग्जीक्यूट कैसे करना है हमें ये समझ में नहीं आता। तो अगर हम वो आइडियाज जो हमारे जहन में छोटे छोटे आते हैं कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, आप वो एआई को साथ शेयर कर दे, तो आपको इतने जबरदस्त एग्जीक्यूटेबल आइडियाज शेयर करता है, सजेशन देता है कि आप खुद भी हैरान हो जाते हैं कि अगर मैं किसी इंसान से शेयर करता तो शायद ही मुझे कुछ ऐसे सोल्यूशन मिल लेते। तो नो डाउट स्टूडेंट लाइफ में वाकई हमें एक लिमिटेशन लगानी चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो एक लिमिट के साथ इसको यूज कर सके। जैसे उन्होंने कहा कि जी एआई आ गया, चीटिंग कर ले, तो चीटिंग की बजाय हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि एआई आ गया, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, अगर इसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो इस एआई से जाके वो उसको डबल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले।
तो हम इस तरह से बच्चों को माइंड मैपिंग की ट्रेनिंग की जरूरत है ना, जिस तरह से हम उनको ट्रेन करते हैं कि वो वैसी चीजों को सोचने लगेंगे और उसी तरह से वो एक्ट करेंगे। जी ईशान, क्या बताएंगे आज एआई के बारे में और कैसे यूज करते हैं आप एआई को? मैम इन्होंने जो बात बोली बिल्कुल सही बोली है कि वो हमारे लिए वाकई में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे लिए लर्निंग में ज़्यादा आसानी हो गई है। इवन कि वो टीचर्स के काम में आसानी हो गई है, उनका टाइम सेव होता है उससे। वो हमारे लिए लर्निंग को आसान करता है और फेयर करता है लर्निंग के लिए। तो एआई वाकई में बहुत हेल्पफुल टूल है हमारे लिए। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच जी मिस रुद्र। मिस यहाँ पे ये शफीक भाई ने जो बोला ना, मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगी जो स्पेलिंग्स के बारे में उन्होंने बोला है। अपनी बात बताना चाहूंगी। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं जो है वो स्पेलिंग में बहुत वीक थी, लाइक यू। जैसे आप कह रही होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी ही बात हो रही है। मुझे आप ये कह लें कि मैं अनलकी थी कि मुझे ऐसे टीचर्स मिले इंग्लिश साइंसेस के। मेरा ज्यादा इंटरेस्ट साइंसेस में और मैथ्स में था। तो उन्होंने कहा कि साइंसेस और मैथ्स वालों को ना इंग्लिश याद करने की या स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं होती, बस काम चलाओ। फिर मैंने भी उतने ही काम चलाया जो पास होने के लिए जरूरी था, जिसमें मतलब बस मैंने अंग्रेजी को पास किया। फिर जब प्रोफेशनल लाइफ में आए, आगे यूनिवर्सिटीज में गए, तो पता चला कि नहीं, ये तो गलत हो गया। मतलब इससे ज्यादा काम करना चाहिए था। लेकिन फिर मेरे जैसे बंदे के लिए ग्रामरली और ये वाली चीजें, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। थोड़ा सा स्पेलिंग में इम्प्रूव करने के लिए, थोड़ा सा खुद को स्पोकन इंग्लिश में इम्प्रूव करने के लिए मेरी ये चीज ठीक नहीं थी, तो मेरे लिए तो एआई हेल्पफुल रहा। मतलब वो हमारे यूज करने के ऊपर है कि हम उसको यूज कैसे करते हैं। अगर हमने बिल्कुल ही, अब मेरी जो, मुझे लगता है मेरे अंदर जो कमी थी ना, वो इसको ये पूरी कर रहा है और मेरी हेल्प करता है। लेकिन अगर हम उसको दूसरे वे में यूज करना चाहें कि कोशिश ही ना करें, तो फिर मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो नेगेटिव साइड पे चला जाता है। तो ये मेरा एक ओपिनियन था जो मैं देना चाहती थी। बहुत शुक्रिया जी मिस्टर। ये मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे जगह होती है जहाँ पे टीचर्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं। बच्चे होते हैं बहुत से सब्जेक्ट्स जो पढ़ना चाहते हैं, टीचर नहीं होते। तो अगर एआई जो है वो हर वक्त अवेलेबल है और हर चीज़ पढ़ा रहा है, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। हमें फिजिकली टीचर अगर नहीं मिल रहा है, हमें आर्ट्स पढ़ने का शौक है लेकिन हमें ड्राइंग करनी नहीं आती, अगर वो हमें ड्राइंग के बारे में बता रहे हैं, मैं ये सर्च करूंगी कोई ऐसा एआई टूल है जो कि बच्चों को उर्दू लिखना भी सिखाए, क्योंकि मेरा बच्चा आजकल उर्दू लिखना सीख रहा है और मुझे मेरी उर्दू लिखने लिखाई अच्छी नहीं। और दूसरा ये कि बहुत दफ़ा ये भी तो होता है टीचर्स भी बहुत जगह गलत होते हैं और हमें वो गलत पढ़ा रहे होते हैं। तो कोई ऐसा भी तो बीच में अथॉरिटी होनी चाहिए जिससे हम जाके चेक कर लें कि भाई ये कंसेप्ट ऐसे है या ऐसे है। बाद वक़्त बच्चे ठीक होते हैं, टीचर का कंसेप्ट कुछ और ही होता है। तो ये जो एआई है, ये मुझे नहीं लगता कि अगर हम इसको पॉजिटिव यूज़ करें और बच्चों की माइंड मैपिंग हम ये करें कि आपने इसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना है या इसको सर्च के लिए इस्तेमाल करना है, रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना है, तो फिर वो अच्छा रहेगा। सही। जी शफीक भाई। अच्छा, मेरे तमाम पार्टिसिपेंट्स से क्वेश्चन क्रिएटिविटी के हवाले से है कि हम क्रिएटिविटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे। क्या क्रिएटिविटी किसी टूल के ज़रिए हासिल की गई कोई आउटपुट है या हमारे दिमाग से पैदा की गई कोई चीज़ है। बेसिकली इसमें मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कि एआई क्या हमें क्रिएटिव माइंड सेट दे रहा है या हमें जस्ट हेल्प आउट कर रहा है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को उसके ज़रिए सॉल्व कर लें। सही हो गया। शफीक भाई, जहां तक मुझे समझ में आती है तो एआई आपको क्रिएटिव माइंडसेट नहीं दे रहा। क्रिएटिव माइंडसेट तो आपका अपना है। एआई आपकी क्रिएटिविटी को सिर्फ इनहेंस कर रहा है कि वो अपने सजेशंस आपके साथ जो है वो ऐड ऑन करके और आपको एक बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। अल्टीमेटली क्रिएटिविटी तो ह्यूमन माइंड की होती है ना, क्योंकि जो डिफरेंट डायमेंशन में सोच सकता है, जो डिफरेंट डायमेंशन में एनालिसिस कर सकता है, वो चीजें एआई नहीं कर सकता। और एआई तो आपका ट्रेन किया हुआ है ना, और आपका डिजाइन किया हुआ है, तो एआई आपके लिए क्या सोचेगा। आपने सोचना है और आपने एआई से वो चीजें एक्ट करवानी। दैट्स इट। क्रिएटिविटी जो है वो मेरे ख्याल से ह्यूमंस के अंदर बिल्ड इन होती है कुछ हद तक। कुछ वो अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं और कुछ वो अपने एक्सपीरियंसेस से भी सीखते हैं। लेकिन मेरा मानना ज्यादातर ये है कि मोस्टली जो है ना वो क्रिएटिविटी बिल्ड इन होती है। बाकी एआई में जब आप अपने आइडियाज पुट करते हो तो वो उसको मजीद आगे इनहेंस कर देता है, जैसे मैम ने कहा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी मिस सिद्रा। आज की चर्चा से क्या समझ में आया, क्या सीखा आपने?
जी, मैं सबकी आइडियाज़ सुन रही थी। चैट जीपीटी हेल्प करता है हमारी काफ़ी चीज़ों में। जैसे मैं पाकिस्तान में पढ़ी थी, तो पाकिस्तान में जो सिलेबस था, जैसे मैंने देखा पाकिस्तान में ना तो रट्टा सिस्टम बहुत ज़्यादा था। टीचर्स ने दे देना और हमने रट्टा लगाना, वही सिलेबस हमने बीए तक वही पढ़ा। कुछ भी उसमें चेंज नहीं था, मुताले पाकिस्तान थी वो सेम थी। कुछ जो था वो पहले हमने पढ़ा शुरू में, यानी नर्सरी प्रेप से जैसे ही हम पढ़ते आए हैं, वही नकात, वही सारा कुछ। तो यहाँ के बच्चों के लिए जो था ना, तालीम जो थी ना वो काफ़ी डिफरेंट है ना बच्चों की। यानी तीसरी चौथी क्लास में ही बच्चों को हर चीज़ साइंस है वो इतनी मतलब दे देते हैं, प्रैक्टिकल होती हैं चीज़ें। तो पाकिस्तान में हम लोग ज़्यादातर पीछे इसी वजह से रह गए हैं कि हम लोग यानी कल्चराइज़ भी वही जो पीछे देखते आए हैं, उसी को फ़ॉलो करते हैं। तो हम लोग अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। तो चेंज बंदे को उस लिहाज से करना चाहिए कि जो आपको बेनिफिशियल हो, जो आपके बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। अभी यहाँ कुछ चीज़ें मुझे नहीं अपने बच्चों के लिए अच्छी लगी, तो मैंने ढूँढा कि मुझे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिले कि जो मेरे बच्चों को ये भी चीज़ें ज़ाहिर है अडॉप्ट करनी ज़रूरी थी। तो हमें अपने आइडियाज़ ज़रूर हम यानी लेते हैं, चैट जीपीटी हमें देता है, हम कुछ भी है उसको एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं, वो हमें काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ दे देता है। फिर हमें खुद सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि नहीं हाँ, ये चीज़ उसने हमें ये आइडिया दिया है तो ज़ाहिर है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रास्ते फिर खुल जाते हैं। समझ में आना शुरू हो जाता है। पहले चॉइस हमारे पास 1 या 2 होती थी, फिर चॉइसेस करने में हमें काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी हेल्पफुल है ना। और लैंग्वेज का भी मुझे आके काफ़ी फ़र्क पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में ज़ाहिर है सिर्फ़ इंग्लिश थी, जब यहाँ आई तो इटालियन से पाला पड़ गया। तो इटालियन फिर ऐसे वो आ गए कि जब इंग्लिश बोलने लगती हूँ, इटालियन मुँह से निकलती है तो मैं कन्फ्यूज़ ही हो जाती हूँ। तो ये कि ज़ाहिर है हम लोग हर चीज़ को बैलेंस लेके चलेंगे तो ही लाइफ़ चलती है। तो सारा हम लोग डिपेंड नहीं हो सकते चैट जीपीटी पे भी, और ज़ाहिर है अपने आइडियाज़ तो अपने ही हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच मिस सिद्रा फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इट। जी, अहमद मुस्तफा भाई, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया? लाइक अगर स्टूडेंट को कोई वन ऑन वन इन द फॉर्म ऑफ कोई ट्यूटर सिखाए तो उसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे क्लियर होते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द पीपल वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक ट्यूटर इंट्रोड्यूस किया जो खान में गो है, और वो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता है और आपको सोचने पे भी मजबूर करता है, ताकि जो आंसर क्वेश्चन कर रहा है उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। और इन द एंड वो यही इंकरेज कर रहा है कि सबको ये न्यू वे ऑफ लर्निंग अडॉप्ट करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच बहादुर भाई। ओके, वी हैव जॉइंड बाय आजम भाई। जी आजम भाई, क्या सीखा आज की टेड टॉक से आपने, और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अलहमदिल्ला। अच्छा मैम, इसके अंदर जो है वो जो चीज़ मुझे समझ में आई वो ये है कि आपका ये जो टीचर्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे मतलब जो है वो आपका जो है वो टाइम भी सेव होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम कर सकते हैं, और जो है ना वो टीच कर सकते हैं, और एआई की हेल्प से, ठीक है। और लेकिन इसमें यह है कि मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो वो मतलब जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब उनकी जो सीखने की या मतलब उनकी वो जो है वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी जो है ना वो कम हो सकती है इस चीज़ के ऊपर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करके और रिलाय करके इसके ऊपर ना, ठीक है। लेकिन यह है कि आपका जो है वो अगर इनको प्रॉपर जो है वो तरीके से जो है वो टीच किया जाए और समझाया जाए कि इसको यूज़ कैसे करना है, और ये इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, तो शायद जो है वो इससे जो है वो हम और मज़ीद बेहतर जो है वो रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये मेरी बहुत शुक्रिया आजम भाई। जी मिस सोलत, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया आपको? मैंने यही कि हमारे लिए जो है बच्चों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। बाकी इन्होंने जो बात बताई है, इन्होंने मुझे ये है कि बच्चों के लिए काफी आसान हो गया और टीचर्स के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि टीचर्स और हम लोग जो मदर्स हैं जो बच्चों को घर पे पढ़ाती हैं, तो हम लोगों के लिए भी काफी चीजें इसने आसान कर दी हैं। चैट जीपीटी से हम यूज करते हैं, और पहले ये था कि सिर्फ एक टॉपिक दे दिया जाता था। अब ये कि बच्चे चैट जीपीटी से जब देखते हैं
तो उसके अलावा उनको और क्रिएटिविटी आती है कि नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते, क्योंकि अगर कोई सही होता है तो आपको बता देता है कि आप इसको और ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो इसलिए बच्चों के लिए खास तौर पर ये स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और जो आजकल आगे जो आ रहा है उसके लिए हमें जरूरी है कि हम इसके साथ चलें। और सिर्फ इस पे कोई ऐसा इशू नहीं है कि बच्चों के लिए वो हम ये कि बच्चों को माफ कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को उसका सही इस्तेमाल बताएंगे तो वो इंशाल्लाह जल्दी कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया मिस औरत जी। आपके भाई क्या सीखा आज की टेड टॉक से आपने, क्या समझ में आया? अनम्यूट कीजिएगा आकिब भाई, आपका माइक म्यूट है। जी मिस मरियम, आज की TEDx जो थी वो बहुत ही जबरदस्त थी। आज की TEDx में हमने सीखा कि AI आपको कैसे हेल्पफुल रहने दे देता है। AI आपको मुझे 3 चीजों में ट्रेन करता है। जैसे कि अभी आपने AI को एक प्रॉम्प्ट दिया कि एक्ट लाइक अ वीडियो एडिटर, तो हम ऐसे कोई भी लेसन है, कोई भी प्रोजेक्ट है, तो हम उसको वो प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि आप मुझे ऐसे समझाओ कि आप मेरे बड़े भाई हो, आप मुझे ऐसे समझाओ कि आप एक छोटे बच्चे हो। तो AI को आप जिस शक्ल में चाहें आप उसको मैनेज कर सकते हैं। AI आपका बेहतर उस्ताद बन सकता है, AI आपका बेहतर एडिटर बन सकता है। वो आपकी तमाम चीज़ों को, आपके प्लान्स को बेहतर तरीके से इन्हांस कर सकता है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज के दौर में इंसान का दिमाग जो है वो लिमिटेड है, जबकि AI आपको उस लिमिटेशन से आज़ाद करता है। तो आप अपने प्रोग्राम्स को, अपनी थ्योरीज को या अपनी स्टोरीज को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। किसी एक अच्छे उस्ताद से भी अच्छा है, आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू डू विद AI। तो एज वेल दैट्स इट। थैंक यू सो वेरी मच आकिब भाई फॉर शेयरिंग ब्यूटीफुल थॉट्स विद अस। जी नीरव, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया? मैम इसमें उन्होंने यही बताया कि बच्चे किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं एआई से। एआई कभी भी टीचर्स की जगह नहीं ले सकता। डिपेंड करता है बच्चे पे कि बच्चा किस तरीके से एआई से सीख रहा है। और जैसे आजकल ये है कि सब कह रहे हैं कि कहते हैं कि बच्चे चीटिंग करते हैं एआई से हेल्प लेने की बजाय। तो उसके लिए स्पेशल खान मीगो को बनाया गया, जो कि बच्चों को डायरेक्ट आंसर नहीं देता, उन्हें स्टेप बाय स्टेप बताता है कि तुम कैसे आंसर तक पहुंच सकते हो, कैसे उसको हल कर सकते हो, और ताकि बच्चों का माइंड खुले और वो सीख सकें उससे। ये बताया गया। और इस बात को कंफर्म किया गया कि एआई कभी भी टीचर्स की जगह नहीं ले सकता। जो टीचर्स की प्लेस है वो टीचर्स की ही रहेगी। जो रहनुमाई जो टीचर देते हैं वो एआई नहीं ले सकता। ओके मीरा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग इट। जी लैला, क्या सीखा आज की टेड टॉक से आपने? मिस लैला बताइएगा आज की टेड टॉक के बारे में। जी मैम आज की टेड टॉक में साल खान, जो कि सलमान खान भी उनका नेम है, खान एकेडमी के बानी हैं। और मैम उन्होंने एक्चुअल में ये बात किया कि जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। इसको हम जिस भी चीज़ के लिए यूज़ करें, वो मतलब वो तो तालीम के हवाले से बात करें, लेकिन अगर किसी भी शोबे में जैसे कि मेडिकल का या जिसमें भी इसको यूज़ करें तो ये हम बेहतरी ला सकते हैं सिस्टम में। और मैम इन्होंने इसके अलावा हमें अपनी खान एकेडमी में एआई का टूल खान मिंगो मुतारिफ करवाया, जो कि हमें जिसमें वो ये बात साथ में एक्सप्लेन करते हैं कि इनका ये जो टूल है बच्चे को डायरेक्ट हर चीज़ का बढ़ बढ़ के आंसर नहीं करता, बल्कि वो घुमा फिरा के बच्चे को इस तरह से आंसर करता है कि बच्चा भी उसमें इन्वॉल्व हो और बेहतर तरीके से एज अ जैसे टीचर से गाइडलाइन लेके हम एक आंसर का वो हमें मुतवज्जा भी करते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ, और हालांकि वो छुपे हुए अंदाज में हमें गाइड भी कर रहे होते हैं। तो उनका ये जो है एआई टूल वो हमें ऐसे ही गाइड करता है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर हम पॉजिटिव और अपनी वैल्यूज के साथ, ऑब्वियसली मैम मैं सिर्फ इतना कहना के साथ यूज करें तो हम बेहतरी की तरफ सफर करेंगे और बेहतरीन रिजल्ट लेंगे। मैम ऑब्वियसली अगर हम ओल्ड वे देख लें, मतलब मैं अपना बचपन देख लूं, हम अपना पुराना जमाना देख लें, अगर हमारी क्लास में मैं अपनी मिसाल लेती हूँ, अगर मैं अपने फ्यूचर के साथ मेरी वो थिंकिंग डिवेल्प नहीं है, अगर मैं अपने फ्यूचर के साथ सिंसियर नहीं हूँ, मुझे अपने एम का पता नहीं है, मेरी वैल्यूज नहीं है, तो मेरे पास उस टाइम बुक्स है, मेरे पेरेंट्स के थोड़े से पैसे हैं, मैं बचपन की मैम बात कर रही हूँ,
तो मैंने तब भी नॉन सीरियस बिहेव करना है और मिसयूज करना है। अब मैं यही बस इतनी सी बात अपनी इसी टॉक में ऐड करना चाहूंगी कि अगर अब हमें आपके बच्चों के हाथ में भी, मतलब मैं अपनी बेटी के हाथ में वो फोन दूंगी या पैसे एक्स्ट्रा दूंगी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दूंगी, बट उसके साथ वो जो एक मैं उसको साथ वो चीज दूंगी, एहसास, पॉजिटिविटी और खैर की नियत, तो वो हर चीज को उसी तरह लेके चलेगी। बस दैट्स इट मैम, मैं इतनी बात और करूंगी। शुक्रिया जी। आसिफ भाई, लास्टली आपका एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहेंगे कि क्या सीखा आज की टेड टॉक से आपने। सुलेमान भाई, आपने कैमरा ऑन नहीं किया, मैंने बारहा आपको रिक्वेस्ट भेजी है और आपका माइक भी अनम्यूट नहीं हुआ। जी आसिफ भाई। आज वाला टिकटॉक से मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसको दोबारा फिर से मुझे देखना पड़ेगा, आइडियाज कैच नहीं हुए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लीजिएगा। सुलेमान भाई, आप मुझे सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर दें। जी सुलेमान भाई, क्या सीखा आज की टेड टॉक से आपने। मैम पहली बात तो ये कि नेटवर्क बहुत स्लो है, तो इसलिए मैं वीडियो कैमरा नहीं ऑन कर पा रहा। ठीक हो गया, आप बताएं कि आपने टेड टॉक से क्या सीखा। अच्छा, और से मैंने यही सीखा है कि आप के मुल्क होते हैं उसमें बच्चे चीटिंग करने के लिए या पास करने एग्जाम्स को चैट जीपीटी को यूज करते हैं। और कितने ही स्कूल, यूनिवर्सिटी, स्कूलों ने ये देखते हुए चैट जीपीटी को यूज करने से उन्होंने बैन करवा दिया। तो खान अकेडमी ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसके अंदर उन्होंने और एज अ स्टूडेंट उससे, मतलब उस सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। अब एज अ स्टूडेंट है और सवाल फिर उसका आंसर देगा। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच सलमान भाई फॉर शेयरिंग इट। हाँ, लास्ट ये मुझे पता चला अगस्त तक मेरे पास ये न्यूज़ थी कि चाइना में चैट जीपीटी बैन है। चाइना में कोई भी स्टूडेंट या किसी भी एडल्ट को चैट जीपीटी के एक्सेस नहीं है और चैट जीपीटी को कोई भी यूज नहीं कर सकता। तो सिमिलर प्रोसेस होगा, शायद यही कुछ रीजन थी जिनको उन्होंने कंसीडर करते हुए उसको बैन किया अपने कंट्री में, इस वजह से वहां पे लोग चैट जीपीटी को यूज नहीं कर पाते। मैम एनी हाउ, जी, जहां तक चैट था आज की जीपीटी की हमारी जगह क्लास। वहाँ डीप सीक यूज होता है। जी जी, वो तो अभी रिसेंटली 2025 में उन्होंने लॉन्च किया। जी किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई इसके रिलेटेड कोई चैलेंज है आज की क्लास के बारे में, तो प्लीज बताइएगा, अदरवाइज लेट्स एंड अप द क्लास बिकॉज द टाइम इज एंड अप। मैम आपने जैसे कहा जी कि नसीमुल्लाह चाइना में भाई। चैट जीपीटी, मैडम इन सबसे रिक्वेस्ट है अटेंडेंस प्लीज मार्क कर दें, वो अपने सोशल मीडिया के लिंक्स भी अपडेट कर दें। रिक्वेस्ट ये है कि वो कर दें। अपनी जी, बात पार्टिसिपेंट्स अपनी शीट्स हैं उनको अपडेट कर दें ताकि हमें बार बार आपसे रिक्वेस्ट नहीं करना पड़े, हम डायरेक्टली आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर ले और फिर आपके सोशल मीडिया से ही आपकी डे टू डे प्रोग्रेस ट्रैक होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके लिए। और अटेंडेंस डे टू डे अपनी पंक्चुअलिटी के साथ मार्क कीजिए ताकि उसका रिकॉर्ड मेंटेन रहे। जी मिस लुबना, आप कुछ कह रही थी। जी मैम जैसे आपने कहा कि चाइना में चैट जीपीटी वो लोग नहीं यूज कर रहे अगस्त से, तो वो सिर्फ चैट जीपीटी यूज नहीं कर रहे, बाकी तो एआई टूल यूज कर रहे होंगे। क्योंकि जैसे मैंने क्लास में ही सुना था कि वहां पे एक ऐसा नहीं, हॉस्पिटल चैट लॉन्च हुआ है। जीपीटी, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वहां पे बहुत सारी दूसरी चीजें वो एआई में एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी एआई में एक्सेल कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट नहीं हो रही। मतलब जैसे भी मिस सिद्रा ने शेयर किया ना कि उन्होंने वो चैट जीपीटी की जगह डीप सीक यूज कर रहे हैं, तो डीप सीक उनका अपना लॉन्च किया हुआ एक एआई टूल है और वो उन्होंने 2025 जनवरी में उसको लॉन्च किया था और उसको चैट जीपीटी के कंपैरेटिव उन्होंने लॉन्च किया, वो उसका कॉम्पिटिटर है। ठीक है, इस तरह से वो उसको यूज कर रहे हैं। So thank you so very much for joining today. We'll see you tomorrow at the same time. Keep doing amazing things. Allah Hafiz.